what is Nandi? See, basically Nandi has two virtues. The first one is Nandi has a patience. Nandi shows that one has to have a lot of patience. He's just sitting there without doing anything, without any anticipation. See, Nandi is a साधक की अंतिम अवस्था, जो शिव के बहुत नजदीक चले जाते हैं, उनको कोई अपेक्षा नहीं होती. They just want to be with the Shiva. That is all that they want. They don't ask for anything. They don't wait for something to happen. They just wait. They have a lot of patience. That is one. And secondly, Nandi is the power of reproduction. And Shiva, very well, is the Adi Shakti. He's not only a god for destruction, but that destruction also leads to some kind of a reproduction. So somewhere, वो निर्माता भी है. So somewhere Nandi represents that aspect of Shiva. So these two things are, he just listened and he follows 100%. This is another virtue of Nandi. Nandi never challenges, Nandi never has a logic of his own. Nandi is in total surrender. So surrender and patience, श्रद्धा और सबूरी, जो साईं बाबा कहते थे. और बिल्कुल नंदी के पास ये दो गुण हैं. नंदी को, and this is some surrender that a typical disciple is supposed to have for his master. शिष्य को गुरु के प्रति जो समर्पित होना चाहिए, वो समर्पण नंदी का है. And Nandi doesn't talk about it. Nandi talks about nothing. Nandi just follows. Are you getting this point? So somewhere, I think he is a very ardent listener. He absorbs everything. Last time मैंने आपको कथा बताई, नंदी के कान में जो जाता है ना, और नंदी उसको पूरी तरह से अंदर उतारता है. Nandi doesn't hear, Nandi listens. That's a difference between the hearing and listening. Nandi listens and work on himself. So that is a sadhak ki ek antima avastha. And secondly, somebody had asked about pradosha. See, pradosha is normally happens on 13th day. Every 13 day, just कहते हैं ना कि after new moon 13 day and after no moon 13 day. Treyodashi. So that is always a pradosh. And pradosh, when it comes, that 13th day happens to be on Saturday, it's considered to be one of the topmost muhurta. That is the day when they say most of your sanskaras can get vanished if you do sadhana on that day. Because Shani supports, Shani also is actually a form of Lord Shiva. That's why Hanuman भी कहा जाता है कि भगवान शिव का ही अवतार है. So somewhere Shani and Pradosh goes very well. And जितनी सारी साधना करते हैं हम, तो उसको पूर्ण करने का और सारे संस्कार निकालने का, संस्कारों को निराकरण का अधिकार उस दिन के. Are you getting this? So somewhere we need to understand these two things. And those who had asked this question, so these are the answers one can look for. So one should be like, yes, Saturn is supposed to be karma master, yes. And karma का सारा जो नियंत्रण है वहाँ से होता है. And कर्म का जिसको कहते हैं कि कर्म विपाक या कर्म का पूरी तरह से निवारण, संस्कारों का निवारण, that is what happens on this particular day. So the sadhak is actually waiting for that day, because all that sadhana you do on the other days, other 14 days in a fortnight, actually gets fructified on that day. And Shani Pradosh है तो इसके लिए तो बहुत ज़्यादा महत्व होता है. So thank you for those two questions whoever I asked, and I hope they are satisfied with these answers. Now today we are going to go into the 11th and 12th adhyay. Yes, Gayatri has something to elevate the past life. Karmas can be achieved by observing Shani Pradosha. Thank you, Gayatri, for sharing that. Yeah, so normally I say past is, everything is a past till this moment. So we cannot really differentiate between this life and that life. It's all continuity. So anything happened till this moment. Yeah. So thank you very much. So we'll go for the 11th adhyay now. 11th and 12th is something which we are going to finish today. आज हम दो करेंगे. तो पहले हम 11वें अध्याय की तरफ जाते हैं. The birth of Shri Guru. ये तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण, दत्तात्रेय के जन्म के बाद ये ऐसी घटना गुरु चरित्र में है जो एक्चुअली रोंगटे खड़े कर देते हैं. When you listen to this particular अध्याय, बड़ा भावुक कर देता है. Because this is where actually the real Guru Charitra starts, according to me here. पहले 10 अध्याय थे. They were actually what we're going to say, some kind of a preface, prologue.
From this adhyaya, the Guru Charita literally begins as it is more about the life of Sri Narasimha Saraswati. श्री गुरु का चरित्र है वो. श्री गुरु यानी बेसिकली नरसिंह सरस्वती. बाय द वे पहले अवतार श्रीपाद श्री वल्लभ हुए थे, उनके बारे में 2-3 अध्याय है जैसे हमने देखा था 5, 6 और 7. एंड देयर आफ्टर देयर वाज सम डिस्क्रिप्शन अबाउट गोकर्ण महाबलेश्वर वगैरह वगैरह. चौथे अध्याय में भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ था एंड वी हर्ड दैट स्टोरी. नाउ वी आर गोइंग हियर. द बून गिवन बाय श्री श्रीपाद वल्लभ. कुरवपुर में स्नान करते समय उन्होंने देखा कि आत्महत्या के लिए एक माँ और एक बेटा जा रहा था. बेटा मतिमंद था, मेंटली चैलेंज था. उसके पिताजी बड़े विद्वान थे, स्कॉलस्टिक पर्सन थे. ही डाइड अर्ली, बट दिस बॉय वाज बोर्न विदाउट एनी इंटेलेक्ट. ही डिड नॉट हैव अ राइट सेंस. माइंड उसका बड़ा दुबला था. एंड फाइनली ही कुड नॉट डू एनीथिंग. पीपल लोग उनको हंसते थे और जीना इतना मुश्किल हुआ दोनों के लिए कि दोनों ने आत्महत्या करने का निर्णय लिया और वही नदी पे गए जहाँ पे श्रीपाद श्री वल्लभ अपनी साधना के लिए जाते थे, स्नान के लिए जाते थे. जब उनको मिलने के बाद, जैसे आपको याद होगा कि मरने के पहले दे थॉट दैट दे विल टेक ब्लेसिंग फ्रॉम श्रीपाद श्री वल्लभ. एंड देन ही गिव अ boon saying that next life, you remember the whole story of प्रदोषा कथा, शिव प्रदोष कथा उन्होंने बताई थी, और राजा चंद्रसेन था और उसके राज्य में जो हुआ था. एंड एक्चुअली दैट वाज what she did throughout her life. और बच्चा भी, जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि suddenly he got all his intellect, बड़ा होशियार हो गया, उसका मन नॉर्मल हो गया. And that lady died after this particular life, and then she was born in this particular life. So this is about her rebirth and the birth of Shri Guru. So let us go to the next one. Yeah. Yes, the same lady was born as Amba Bhavani and got married to a Brahman called Madhav. This thing happened in Karanja. Karanja is a small place जहाँ पे श्री गुरु का जन्म हुआ. तो ये कारंजा गांव में अम्बा भवानी करके उसने पुनर्जन्म लिया और उसके पति थे माधव नाम के, ब्राह्मण थे, बाचुकेई गांव के. And the boy was born to this couple who started chanting Om right from the birth, creating the first miracle of his life. जैसे बच्चा जन्म लिया उसने ओम बोलना शुरू कर दिया. Right from the time of the birth. That was something which was unusual. क्योंकि normally बच्चा तो बोलता ही नहीं पहले 1-8 बरस, 1.5 बरस. तो this child started with the Om. This is something which is difficult to believe. But let me quickly share with you कि एक बार मुझे अनुभव हुआ था when we were in Chennai. चेन्नई में एक couple है, they are still there, the solicitor couple, and they wanted to conceive the second child. And somehow or other it was not happening. वो लोग मठ में आए, स्वामी के साथ सेवा की उन्होंने, कुछ 10-11 दिन सेवा की. And when they went back, by the grace of Swami and Shri Guru and Lord Dattatreya, she conceived. And वो जब pregnancy period में थी, that time I used to go practically every month to Chennai for my seminars. तो ये 8-9 महीने का उसका जो प्रेगनेंसी पीरियड था, we used to give a रेकी. सेमिनार खत्म होने के बाद सब 6 साधक उसको मिलकर रेकी देते थे. और जब सारे लोगों के सामने हम सुन रहे थे, not only me but everybody else could hear, that child was chanting Om. And it was something which we have heard with our own ears, something which has happened in front of so many people. But she was chanting from the womb. And there's a big story about that girl, which is not the right forum to say. तो ये जरूर मैं कहूँ कि ये ओम कहना, अगर वुम में ओम कहना पॉसिबल था, तो आई एम श्योर दैट ओम ये शब्दों में भी ओम है. दैट इज द अनदर ब्यूटीफुल थिंग, यू नो. सो समवेयर विल हैव टू, बाय द वे वुमन में भी ओम है. So astrologers predicted this boy is an avtara and will be worshipped by one and all. जैसे किसी का जन्म होता है तो ज्योतिषी उसकी कुंडली बनाते हैं, तो उसकी कुंडली बना दी उसने, और ये कुंडली देखकर सारे ज्योतिषी थक हो गए. जैसे ये तो अनयूजुअल है, दिस समथिंग फिनोमिनली गुड. ये बच्चा है, ये बच्चा बहुत आगे बढ़ेगा, ये तो अवतार है भगवान का, और इसके नक्षत्र ऐसे है कि ये सारी दुनिया उसको सलाम करेगी, दुनिया के लिए वंदनीय होगा. ये बच्चा शादीशुदा नहीं होगा, ये संसार नहीं करेगा, लेकिन सारी दुनिया को ये सबसे बड़ा आशीर्वाद देगा. So somewhere they realized that this boy was unusual right from the time of his birth. So okay, so next one let us see.
So this is where the story starts. Then the mysterious silence. Now that is something very unique about Narasimha Saraswati ji. He never spoke a word except chanting the Om. He never spoke a word for the first 7 years of his life. He just chanted Om most of the time, smiling at everyone who asked him to speak. He was always very pleasant and very happy child. And parents were obviously worried, because एक बच्चा अगर 7 बरस तक नहीं बोलता, because 1 बरस, 2 बरस, 2.5 बरस, ये up to a point, नहीं, पेरेंट्स खुद को समझाते हैं कि नहीं अभी बोलेगा, कई बच्चे लेट बोलते हैं, लेकिन by the time he reached 7, that was something not okay for the parents, and they were always worried. They tried to show to the people, ज्योतिषी को पत्रिका दिखाते थे, वो कहते थे कि शायद बोलेगा नहीं, कई लोग बोलते थे बोलेगा ही नहीं, कई लोग बोलते थे और बाद में बोलेगा, because somehow or other nobody could figure out. Possibly they realized that he had talking abilities, but he doesn't want to talk. It was probably his own intention. So he created these kind of miracles. And when he was an infant, second miracle happened. बहुत छोटे थे, 3-4 महीने के थे, and he was fed by his mother on the breast milk. His mother was worried whether her milk would be sufficient for him, and she talked to her husband कि एक भैंस लानी पड़ेगी या कोई दाया को बताना पड़ेगा, because that breast, the milk may not be sufficient to the child. But this child was listening right at the age of 3-4 months. Can you imagine? He touched the breast of his mother to show that she can excrete an abundant milk, और धाराएं बहने लगी, दूध की धाराएं. And that was something which was out of the world for the mother also. That was the second miracle, that everything was in his control. As he neared 7 years, he created a third miracle, because उसके माँ बाप उसको हमेशा बोलते भाई कब बोलोगे तुम, वो खाली हंसता था, because he had his timing fixed. He had his own intention. Every avatara comes with his own agenda. उसका भी कुछ एजेंडा था, वो दूसरों को बताना नहीं चाहता था, नहीं, और शायद पता नहीं भी सकता था. एंड उसकी माँ ने उसको बहुत किया कि भाई तो अवतार बोले जाते लेकिन तो बोलता नहीं है, तो कैसे पता चले कि तो अवतार है. Because our memories are short, she forgot that he created that milk miracle. And by the time you are approaching 7 years, तो अंदर एक लोहे की ये पड़ी थी, रॉड, आयरन रॉड. He went inside, और आयरन रॉड को उसने पकड़ा दोनों हाथ में, और वो गोल्ड का बन गया. And when the parents saw that, they realized कि what is up to, क्योंकि ज्योतिषी ने तो बताया था कि ये घर में है तो कुछ कमी पड़ने वाली ही नहीं, ऐश्वर्य तुम्हारे चरणों में आ जाएगा. Then they gave some more things to find out whether it is a fluke or he can do it. And he did everything. जो कुछ लोहे का पड़ा था सब सोने का कर दिया. And he kept on smiling. And he kept on telling that, look, I'm in control. With the इशारे से बता रहा था. But that was the third miracle after his Om and the milk, and this is the third miracle by converting an iron bar into a golden bar, and also indicated that he would speak. तो उसको माँ ने बोला भी तो ये सब करते हो तो बोलोगे कब. और जब उसने ये पूछा तो उसने खाली उसको एक अपने जनोई का ये दिखाया, ऐसे हाथ से दिखाया, और कमर का जो एक डोरा लगाते हैं, धागा लगाते हैं ड्यूरिंग, एंड that's what he said. He indicated that मेरी जनोई करो तो मैं बताऊंगा. Okay, let's go to the next one. The decision for thread ceremony. Now अभी 7 बरस हो गए थे, 8 बरस होने के पहले उसकी जनोई होनी चाहिए. The parents decided to perform his thread ceremony and make elaborate arrangements. अभी उसकी इच्छा है, वो बता रहा है लेकिन बात तो नहीं कर रहा है. तो सभी जो गांव में जितने लोग थे, शास्त्री पंडित थे, उनको भी बुलाया, आजू बाजू के पड़ोसी अड़ोसी को बुलाया. And people started wondering, why they are doing this as the boy is dumb. लोग आपस में चर्चा करने लगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसलिए तो जनोई हो नहीं सकती, थ्रेड सेरेमनी हो नहीं सकता, उपनयन हो नहीं सकता, क्योंकि बच्चा बोल ही नहीं सकता, तो मंत्र कौन सा बोलेगा. और मंत्र का उच्चारण ये बहुत जरूरी है, गायत्री मंत्र का उच्चारण उसको आना चाहिए, नहीं तो कैसी जनोई होगी. How can he chant Gayatri mantra, which is the core of the thread ceremony? They also did not understand why the parents are doing so much elaborate arrangements and wasting money. बहुत सारे अरेंजमेंट की, इतना सारा उन्होंने थोड़ा भी खर्चे के लिए इधर उधर देखा नहीं. बाय दैट टाइम संपन्नता भी आई थी, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता था. सबको भोजन के लिए बुला रहे हैं, इतना बड़ा समारोह कर रहे हैं, क्यों, ये तो बोलने वाला है नहीं. They thought that this particular thread ceremony is going to be a failure, and they wondered obviously. That is what the avatars do. They make people keep on wondering till they strike.
So somewhere we go to the next part of the story. The child chants Vedas. अभी आप जानते हैं कि बहुत सारे लोगों ने देखा होगा जनोई कभी ना कभी. The ceremony starts and the divine child is asked to go and ask alms for his mother. अभी उसको संन्यास लेने का एक विधि होता है कि उसको अपनी माँ के सामने जाके भिक्षा मांगनी पड़ती है ना. 3 बार भिक्षा मांगनी चाहिए. बिकॉज 3 बार क्यों? बिकॉज वी नो दैट वेरी वेल. 3 नंबर ये माइंड बहुत अच्छी तरह से समझता है ना. मन को 3 नंबर बहुत अच्छा समझता है. सो 3 बार अगर करे तो इसका मतलब कॉन्शियसली इज डूइंग. सो दे वांट द कॉन्शियसनेस टू बी देयर इन एवरी रिचुअल. सो उसको कहा गया एज नॉर्मली दे से गो एंड आस्क योर मदर, अपनी झोली फैलाना और माँ को बोलना कि मुझे भिक्षा देना. एंड दैट इज द टाइम ही चैंट द फर्स्ट मंत्र ऑफ ऋग्वेद, अग्नि मीळे पुरोहितम. He spoke, and he spoke for the first time in the life, in 7 years, and he chanted the first mantra of the Rigveda. So this is exactly what. कि आप जानते होंगे कि बहुत सारे साधु, ऋषि मुनि, महात्मा लोग जब मौन में जाते हैं ना, जैसे श्रीधर स्वामी करते थे, 4-4 महीना मौन में जाते थे, और जब से मौन से बाहर आते थे ना, तो इतनी भीड़ जमती थी उनका पहला शब्द सुनने के लिए. Because they channelize all that force of the sense organ at that point of time. जैसे आप जानते हैं ना, सुबह भी हम उठते हैं, नहीं, भगवान को सुबह हम जगाते हैं. अभी अभी स्वामी जी को जगाया, नहीं, दत्त कुटीर में, दत्त निवास में, दोनों जगह, दत्त भवन में, दोनों जगह जगाया. नहीं, क्यों जगाया? क्यों? स्वामी जी सोते हैं. नहीं, कहा जाता है कि कृष्ण जब सोते थे गोकुल में, जब सो जाते थे, तब जब उठते थे ना, तो उनको जागते हुए देखने के लिए बहुत सारा गोकुल इकट्ठा होता था. Because they believe that every time after some rest of your organ, when you start activating that organ, the full force of energy comes out. वो कल्याणप्रद होता है. आप खुद जानते हैं ना कि आप जब उठते हो सुबह सुबह, तो क्या करना चाहिए आपको? अपने हाथों की तरफ देखना चाहिए. Don't look at here and there, look at your own palms. तुम्हारी जो दृष्टि 8 घंटा के लिए बंद थी, वो एक ऐसा फोर्स बन जाता है कि when it falls on your own palm, because palm में you know very well that palm में पूरा तुम्हारा शरीर है, शरीर का डिजाइन है. This is a map of your body. This is where we are all connected. Every part of the body is connected to your heart. हस्त शास्त्र जो है, palmistry, that they know. So when you look at that, you are not actually wasting energy. You are recycling the energy for your kalyan. तुम्हारी सारी आंखों की जो एनर्जी है, तुम्हारी सारी भीतर आंतरिक एनर्जी है, तुम पूरी खुद के ही कल्याण के लिए इस्तेमाल करते हो. सो यू आर रिसाइकलिंग दैट सो दैट यू रिमेन हेल्दी थ्रू आउट द डे. सिमिलरली व्हेनेवर कृष्ण यूज्ड टू लुक एट द पीपल, जिसके ऊपर उसकी नजर पड़ी उसका कल्याण करे. श्रीधर स्वामी की बात जैसे मैंने कहा था, तो जैसे वो 4 महीने के चातुर्मास के बाद जब बाहर आते थे, उनका पहला शब्द सुनने के लिए सारी दुनिया उत्सुक होती, क्योंकि पहला शब्द आशीर्वाद होता है. भले उन्होंने अगर पूछा भी कैसे हो, even he says good morning, that good morning is the biggest blessing that one can get. No, ये पहली नजर, पहला सुनना, पहला श्वास, जो I mean whenever you have closed your organ for some time and when you open, that's a big celebrative moment for the world. So similarly, उनके मुंह से पहला जो निकला, that also Veda. So can you imagine what must have happened to the whole place? दूसरा उन्होंने जो बोला, followed by यजुर्वेद मंत्र, और तीसरा उन्होंने सामवेद के मंत्र गए. Are you getting this? First started, yes, obviously we always say पहला शब्द जो वेदों का अग्नि है, इसलिए अग्नि कितनी है, इसलिए अग्नि कितनी इज्जत हम करते हैं ना, अग्निहोत्र, यज्ञ, क्योंकि इंसान की शरीर की शुरुआत अग्नि से. हमारा पहला जो स्पार्क है, द स्पर्म फ्रॉम द फादर एंड द ओज फ्रॉम द मदर, ओवा से आया, दैट इज अग्नि, दैट इज बेसिकली अ फायर एलिमेंट. तो हमारा शरीर की शुरुआत अग्नि है, हमारी की शरीर की आखिर अग्नि है, और शरीर की पूरी जिंदगी में हमारी अग्नि के साथ हम जुड़े हुए. नहीं, वी शुड रिस्पेक्ट अग्नि. ये नाता बड़ा दृढ़ है, एंड दैट इज व्हाई दे डिसाइडेड टू डू द यज्ञास, because every day you should relate and increase your relationship with me. So this is the first Agni Mere Purohitam. Agni is the first word, not Jal, not Prithvi, not Akash and Vayu. It was because it is a connecting between
नॉर्मल, व्हाट वी से, लीनियर एंड नॉन लीनियर। दृश्य और अदृश्य को जोड़ने वाला ब्रिज इंसान और देवताओं को जोड़ने वाला ब्रिज है, स्थूल और सूक्ष्म को जोड़ने वाला ब्रिज अग्नि है। He is the first one who doesn't believe in gravitation. It always goes. छोटी सी मैच बॉक्स की कांडी भी हो, छोटी है लेकिन वो जोत भी ऊपर ही जाएगी, नीचे नहीं झुकेगी। So somewhere you have to understand that is the first relationship with it. Asking for alms is a core of the thread ceremony. ये जो आपने देखा होगा गायत्री मंत्र होना चाहिए, नहीं उसको खुद को माँ के पास भिक्षा मांगनी चाहिए। भिक्षा मांगना बहुत जरूरी है। That is the time ego starts getting eroded, which is so essential for walking further on the path of wisdom. आप जानते हैं कि क्यों भिक्षा मांगनी, माँ के साथ क्यों भिक्षा मांगनी? नहीं, क्योंकि जब तुम भिक्षा मांगते हो तो आपका अधिकार नहीं होता। नहीं, भिक्षा में अधिकार नहीं होता। भिक्षा में अधिकार इज ऑन द अदर साइड, देने वाले का। वो दे भी सकते ना भी दे सकते। यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द साधु संत जो होते हैं वो भिक्षा मांग के खाएंगे, नॉट बिकॉज दे डोंट हैव मनी। See, even when they used to go to the गुरुकुल में जाते थे, ऐसा नहीं कि गुरु के पास अन्न नहीं था उनको देने के लिए। फिर भी कृष्ण को भी भिक्षा मांगनी पड़ी, राम को भी भिक्षा मांगनी पड़ी। जब वो आश्रम में गए थे गुरुकुल में, उनको मांगनी पड़ी, बोले भगवान के अवतार क्यों ना। क्योंकि भिक्षा मांगने से शिक्षा की शुरुआत है, विद्या की शुरुआत भिक्षा मांगने से। क्योंकि तुम किसी के सामने हाथ फैला के, झोली फैला के खड़े हो जाते हो, तो देने या न देने का अधिकार उसका होता है। यू हैव टू स्टैंड ऑन द लोअर प्लेटफॉर्म, यू हैव टू स्क्वैश योर ईगो। अहंग है वो भिक्षा नहीं मांग सकता, और भिक्षा मांग के तुम्हारी अहंग को तोड़ा जाता है। अहंकार विहीन तुम होते हो ना तो विद्या प्राप्त करने लायक होते हो, क्योंकि ऐसी विद्या दुनिया के भलाई के लिए। अहंकार के साथ वही विद्या तुम पाओगे तो दुनिया का अकल्याण करोगे। समवेयर वी नीड टू अप्रिशिएट दिस फैक्ट। पांडव कौरव दोनों साथ में सीखे, एक ही गुरु के पास एक ही विद्या, दोनों तुल्य बल थे, दोनों की लड़ाई शुरू होनी थी, दोनों अहंकारी थे। बिकॉज महाभारत वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन गुरुज वेर एक्चुअली द सर्वेंट्स ऑफ द किंगडम। ये तो आप जानते हैं ना, द्रौपदी के वस्त्रारण के टाइम सब गुरुओं ने वही तो कहा, हम कुछ नहीं कर सकते। हमें पता है कि अन्याय हो रहा है, लेकिन हम अन्याय के सामने लड़ नहीं सकते, क्योंकि हम उनका नमक खा रहे हैं। Okay, so somewhere we need to appreciate, that fact कि हम ये जो मांगते हैं, भिक्षा मांगते हैं, भिक्षा मांगने में हमारी अहम चली जाता है। एक कौरव पांडव दोनों के भीतर अहंकार था, और कृष्ण को पता नहीं चल रहा था कि किसके साथ लड़ूं, किसकी साथ दूं मैं। दोनों के साथ तो नहीं हो सकते, लड़ाई का अंत होगा ही नहीं। एंड ही मेड अ सिचुएशन। भगवान हमेशा एक सिचुएशन तैयार करते हैं, जब उसको लगता है कि कुछ करना चाहिए, डजंट डायरेक्टली इंटरवीन। और उन्हें ऐसी अवस्था कर दी कि पांडवों को राज्य छोड़ के वनवास में जाना पड़ा। बहुत पीड़ा हुई, और 12-13 बरस के बाद इतनी पीड़ा सहन करने के बाद वो कृष्ण के चरणों पे गिर गए। इधर से वर्णन गुरुचरित्र में भी आया आगे, है ना, अनंत की पूजा में आया है, समवेयर इन द 40th और 41st। तो जब उन्होंने बाल छोड़े, कृष्ण के सामने धूल में गिर गए और बोले अभी बस करना कृष्ण, बहुत पीड़ा हो रही है, हमारी सारी अहम उतर गई। दैट इज द टाइम ही डिसाइडेड टू सपोर्ट देम। जब तक तुम्हारे पास अहम है, भगवान तुम्हारे साथ नहीं देता। उन्होंने पहला उसका अहम निकाला। सो समवेयर दिस होल थिंग इज टू ब्रेक थ्रू द अहम ऑफ द चाइल्ड। भिक्षा मांगनी पड़ेगी। और मैं देखता हूँ कि अभी ये तो खाली विधि रह गया। ये बच्चे लोग जनोई के टाइम थ्रेड सेरेमनी में भिक्षा मांगते हैं, लेकिन दूसरे दिन से माँ के पास अधिकार से मांगते हैं, ब्रिंग मी द फूड, आई वांट फूड, आई एम फीलिंग हंग्री। दे शाउट एट मदर, दैट इज नॉट ओके। सी एक बार भिक्षा मांगने लगी, हर रोज का खाना भी भिक्षा मांगने रहना, जैसे तुम मेहमान बन के आए हो। नहीं, अगर तुम घर का होने के बावजूद मेहमान बन के जियोगे ना, तो जिंदगी में मेहमान बन के जीने की आदत होगी। नथिंग इज ओन्ड बाय यू, नथिंग यू हैव ब्रॉट विथ यू एंड नथिंग यू हैव गोइंग टू टेक विथ यू। ये जो आइडिया है ना, सो समवेयर यू नीड टू अप्रिशिएट दैट फैक्ट। तो भिक्षा मांगनी जरूरत है। इसलिए हम कहते हैं ना कि भगवान भी तुम्हें सिखाते हैं कि जिसके साथ कामधेनु है फिर भी भिक्षा मांगने झोली भी है। दत्त भगवान को झोली की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी he can be perfectly happy, he can create anything that he wants, he doesn't have to come and ask you and me। बट फिर भी एक रिश्ता बनाना है ना, तो थोड़ा सा एफर्ट वो भी करते हैं, एक कदम वो चलते हैं, बोलते भाई भिक्षा देना, और भिक्षा देने के बाद वहाँ से जाते नहीं।
वहाँ रुकते हैं, बोलते हैं इसके बदले में क्या दो। एक्चुअली देने के लिए आए, लेने के लिए नहीं। तो ध्यान में रखना कि ये बचपन से जो ट्रेनिंग है कि नथिंग इज योर राइट, वॉट एवर इज अर्न बाई योर पेरेंट्स इज नॉट योर राइट। टेक इट एज अ मेहमान, टेक इट एज अ गेस्ट, टेक इट एज अ ब्लेसिंग. See, somewhere, if you look at the new generation, and I'm not criticizing them, because they're born with that kind of a personality trait, they look to life as a right. We look to life as a blessing. नहीं, कोई भी क्योंकि कुछ देता था ना, एक चॉकलेट भी कोई देता, एक छोटा सा इरेजर देते, कोई पेंसिल देता एज गिफ्ट, तो हम लोग गदगद हो जाते थे, क्योंकि हमें लगता था कि हमारा तो इसके ऊपर अधिकार है नहीं. Somebody is obliged you, and when you take everything as an obligation, अहम नहीं आता. तुम्हारा हाथ नीचे रहता है तो अहम नहीं आता, ऊपर से निकाल के लेते हो ना तो अहम आता है. तो कहीं पे अहम ना हो. अहम, हम कहते हैं ना 12 बरस गुरुकुल में गुरु वही करते थे, 11.5 बरस तुम्हारा अहम तोड़ने के पीछे पड़ते थे. और जब पूरी तरह से अहम चकनाचूर हो जाता था, गुरु चरित्र में आए की कथा है, तब वो ज्ञान ट्रांसफर करते थे. सी, नॉलेज इज टू बी ट्रांसफर्ड, विजडम इज टू बी ट्रांसफर्ड. इट कैन नॉट बी गिवन. नॉलेज कोई वस्तु नहीं है कि तुम्हें उठा के कोई दे देगा. Knowledge is a process. Knowledge is that divine universe. Knowledge is something which you already have with you, but you're not aware. उसको एक्टिवेट करने का विधि है. जैसे ना somebody transfers data using the Bluetooth, और वेंडर वगैरह जो आए तुम्हारे नए नए apps. It was so easy. It is so as simple as that. But it can only happen when you are free from ego. Because freedom from ego नहीं, इसका मतलब तुम कुछ हो नहीं तब तुम्हें भरे जाते हो. तुम भरे हो तो तुम्हें भरने का किसी के पास कोई रास्ता है ना. सो समवेयर वी नीड टू. द सेकंड थिंग, द जनोई को इतना महत्व वहाँ क्यों दिया? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट थ्रेड सेरेमनी? बिकॉज यू विल सी थ्रू आउट गुरुचरित्र में इसका बहुत ज़्यादा ये. द नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम आर द कंट्रोल सिस्टम्स ऑफ द बॉडी. ये दो सिस्टम्स को कंट्रोल सिस्टम कहा जाता है. देयर आर नंबर ऑफ सिस्टम्स इन द बॉडी. The pineal is a tiny gland. Pineal gland जो होती है, located in the medulla oblongata of the brain, जो पीछे का हमारा पोर्शन है, the seat of memory normally से, है ना. And it is closely connected to the आज्ञा चक्र, a seat of wisdom and intuition. आज्ञा चक्र हम जो इधर लगाते हैं, इधर जो बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, that actually is activating the your pineal gland. Pineal gland is a very tiny gland, but it plays a very large role in life. When the child reaches 8 years, the pineal gland begins to degenerate. नहीं, आप जानते हैं कि 8 वर्ष तक सब बच्चे बहुत सुंदर दिखते हैं, बड़े सात्विक होते हैं, निष्पाप होते हैं, मासूम होते हैं, क्यूट होते हैं, है ना. Somewhere they have a very positive energy. Somewhere that so सत्व इतना पावरफुल होता है. And suddenly we realize that 7-8 वर्ष के बाद बच्चे में एक ट्रांजिशन आता है. No, mainly because as he reaches 8 years, the pineal gland begins to degenerate. The decay corresponds to the beginning of sexual maturation, precipitated by the release of hormones from the pituitary gland. ये एक अंदर का खेल है निसर्ग का, कि हमारी pineal gland को डैम्पन किया जाता है, हमारी pituitary gland उभर आती है. It starts getting activated at the cost of pineal. दोनों साथ में दिख रहे. और जैसे ये pituitary gland start generating lot of hormones, by the hormones from the pituitary gland, and जो खराब चीज़ें हम कहते हैं नॉर्मली बच्चों के भीतर, उसकी शुरुआत वहाँ से होती है. दैट्स व्हाई दैट ट्रांजिशन इज समथिंग व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच हैपेंस इन द 8th ईयर. इसलिए हम देखते हैं आपके हमारे जो बच्चों के लिए भी जितना सारा ये चल रहा है, शिविर वगैरह चलते हैं, नॉर्मली वी स्टार्ट द एज ऑफ 8 और 9, बिटवीन 8 and 9. जैसे वो 8 होने लगते हैं ना, दैट इज द टाइम पहली दीक्षा होनी चाहिए उनकी. अर्लियर दे यूज्ड टू डू दीक्षा एट दिस टाइम. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Many children do not cope up well during this transitional period when the sexual awareness is developing. बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है how to control this, because suddenly they are in a different zone which is not known to them. Suddenly they realize the hormonal changes have happened. They're moving into the world of adolescence. The high level of these disturbing hormones in their blood cause an imbalance between their mental and vital, that is pranic fields. ये दोनों के भीतर का संघर्ष होता है. माइंड और उनकी जो एक बुद्धि है, प्रज्ञा है, एक आत्मा की प्रज्ञा है, उसके भीतर का ही संघर्ष है.
So whatever is not accepted by the society in this world of human beings, civilization, you know, so that starts getting shaken up. They are unable to coordinate with each other, and the thyroid and adrenal glands, see, mental and vital forces cannot coordinate with each other. And the thyroid and adrenal glands do not work in absolute coordination, leading to disruptive behavior such as anger, resentment, or violence. अब ये आपको जरूर समझना चाहिए कि दिस इज हाउ आवर एंसेस्टर्स एक्चुअली मैनेज द सिचुएशन. आज हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वी आर लुकिंग एट सच अ वायलेंस ऑल अराउंड, यू नो, एंड सच अ एंगर ऑल अराउंड, यू नो. आजकल 2.5-3 बरस के बच्चे भी इतना एंगर दिखाते हैं. सो समवेयर वी नीड टू रियली वंडर whether that 8 और 9 में जो प्रोसेस में होता था शायद वो बहुत जल्दी होने लगा है. Most of the nowadays they call them hyper, you know, and they are stamped by the psychologists and the psychiatrists as ADHD, autism. उनके पास labels हैं, but actually those labels are false labels. They have not never understood this particular process. Somewhere they are going through that transition, and managing that transition was basically thread ceremony. Because, you know, with that diksha, what they do, they regulate the pituitary glands excretions. Hormones को regulate किया जाता है. The genoid does that. सूर्य नाड़ी को जागरूक करने का, लेकिन कंट्रोल में करने का. Because सूर्य नाड़ी is very much essential. राजसिक नाड़ी है संसार के लिए. 8-9 वर्षों के बाद विद्या जो होती है, विद्याभ्यास के लिए, गृहस्थ आश्रम के लिए, इसको बहुत जरूरी है. अदरवाइज वी कैन नॉट लीव. बट इट शुड बी रेगुलेटेड. इरेगुलेट होता है, अनकंट्रोल्ड होती है, देन जिंदगी में एंगर, रिसेंटमेंट और वायलेंस के अलावा कुछ नहीं होगा. Probably that explains a lot of rapes, lot of violence, murders, you know, the fights and conflicts in every house today. You know, because the parents cannot understand. Suddenly what happened? He was such a cute boy or a girl, and suddenly they start reacting differently. That is not their fault either, because they cannot manage the situation. खुद को manage नहीं कर पा रहे. So दीक्षा का एक बहुत बड़ा ध्यान में रखना कि ये जो जनोई है, a lot of people may ask this question ki why it was done only in the Brahmins, and I'm using the word Brahmin very carefully, because, you know, I don't believe that the Brahmin is by birth. It is by what you do. Brahma का अभ्यास करने वाला ब्रह्मण. There's not a Brahmana, it's a Brahmana. ब्रह्मण का मतलब जो ब्रह्म का अभ्यास करता है, and ब्रह्म का मतलब सूक्ष्म, जो ज्ञात नहीं है उसको ब्रह्म कहते हैं. जो सत्य की खोज है, ब्रह्मम सत्यम जगन मिथ्या. जग का अभ्यास ये ब्रह्म नहीं. ब्रह्म का अभ्यास यानी सत्य का अभ्यास जो दिखाई नहीं देता है, जो हमारे परिचित नहीं है, अज्ञात है, अज्ञात का अभ्यास करना और उसको ज्ञात करवा लेना, दैट इज द होल आइडिया ऑफ एजुकेशन. एंड ब्रह्मन का मतलब विद्यार्थी, विद्या को पाने वाला है, यू नो. एंड इफ यू लुक एट दैट, हर एक स्कूल में नहीं जाया करता था. कई लोग जाया करते थे, कई लोग नहीं जाते, because, you know, everybody could not afford to go to school for a simple reason, not in terms of money alone, but in terms of India was an agricultural country. It's an agroeconomy based, so a lot of labor was required. So किसान का लड़का स्कूल में जाने से खेती करना ज़्यादा प्रेफर करता था. Right from the age of 8, as he started getting muscles and all, physically थोड़ा तगड़ा होने के बाद, directly was put into this. नहीं जो बाकी काम करते थे, जैसे कारपेंटर का लड़का कारपेंट्री में अपने पिताजी को मदद करेगा. दैट्स व्हाई एक्चुअली, नो, द एजुकेशन वाज नेवर स्ट्रेसफुल टू देम, बिकॉज, यू नो, जो जेनेटिक नॉलेज था उसके साथ साथ जो बस्तियां होती थी, सी हाउ ब्यूटीफुली दैट सोसाइटी वाज डिजाइन. वी मेड अ मेस ऑफ इट, दैट्स अ ह्यूमन प्रॉब्लम, बट बेसिक डिजाइन वाज सो ब्यूटीफुल कि जो हर रोज देखता था ना, वो काम चलता है, सुतारवाड़ी में सुतार काम करेंगे, लोहारवाड़ी में लोहार काम करेंगे, सुनारवाड़ी में सुनार, जहाँ देखो वहाँ एक वातावरण उसको पोषक रहता था और उसको जेनेटिक नॉलेज आता था, कितने पीढ़ियों से चलता था. सो ही डिडंट हैव टू मेक एफर्ट्स टू एक्वायर नॉलेज. आज क्या हो रहा है कि दुर्दैव से what genetic knowledge is not being used by us, and we are trying to acquire a knowledge. And acquisition of a knowledge is always going to be stressful because it is not natural to you, स्वाभाविक नहीं. Are you getting this? So somewhere ध्यान में रखना कि ब्रह्मन, बिकॉज विद्यार्थी एक जगह पे काम करके बैठ के काम करता है ना. इफ यू लुक एट द अदर्स, खेती काम करने वाले या दूसरा कुछ प्रोफेशनल काम करने वाले, दे यूज्ड टू हैव लॉट ऑफ फिजिकल वर्क. विद्यार्थी को फिजिकल वर्क नहीं होता है. जस्ट लुक एट दैट टाइम. बहुत कम लोग विद्या प्राप्त करते थे,
इसका मतलब बहुत कम लोग बैठते थे एक जगह पे, बाकी सारे लोग अपना अपना काम करते थे. सो वॉट एवर दैट एड्रेनलिन एंड द अदर drugs which are produced, or the chemicals which are produced, hormones which are produced, when used, were consumed. So वो consumption होता था तो उसमें problem नहीं होता. But if you accumulate, that accumulation of the hormones is a problem. Then that makes you restless. We are they called? I don't know. The question is, we are they called? Balutedar. So, Shad Balutedar was one of this. But what I'm trying to say is basically, it was based on this principle. अगर तुम बैठे रहोगे तो तुम्हारा एक्यूमुलेट होता रहेगा और विद्यार्थी दशा में बैठना ही चाहते, बिकॉज पढ़ाई करना है तो बैठना पड़ेगा ना. यू कैन नॉट, इफ यू हैव टू रीड समथिंग, दैट्स व्हाई विद्यार्थी एक जगह पे बैठ के, आज भी हम देखते हैं कि विद्यार्थी एक जगह पे ज़्यादा बैठते हैं. इफ दे डोंट स्पेंड इनफ टाइम इन द फिजिकल एक्टिविटी, दे विल हैव द सेम प्रॉब्लम. लॉकडाउन की आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मन की चिड़चिड़ शुरू हो गई, बिकॉज एक जगह पे बैठ के काम करोगे एंड द एड्रेनलिन और द राजसिक तत्व तुम्हारे भीतर का, इट्स नॉट कंज्यूम्ड, इट्स जस्ट गेटिंग एक्यूमुलेटेड एंड इट स्टार्ट्स प्लेइंग हैवॉक. जैसे मैंने कहा, इन द थायराइड ग्लैंड एंड एड्रेनल ग्लैंड्स के भीतर का लड़ाई शुरू हो जाता है, एंड देन देयर इज अ मेस ऑफ लाइफ. सो दैट इज द होल, यू हैव टू अंडरस्टैंड. देन व्हाट हैपेंड, द चाइल्ड डिसाइड्स टू गो इन रिनंसिएशन आफ्टर थ्रेड सेरेमनी. अभी श्री गुरु इज प्रेटी क्लियर अबाउट, he says that अभी हो गया, मेरा अवतार का कार्य शुरू हो गया. Now I was waiting for thread ceremony because जैसे मेरी जन्म होगी मैं निकलने वाला था, because now मेरे राजसिक तत्व जागृत हो गए. I can be on my own, and the parents became restless with the idea. अभी आप समझ सकते हो कि पेरेंट्स का पहला बच्चा है, इकलौता बच्चा है, and now he is saying that I want to go, I want to leave you. It was just not acceptable to the parents. But Shri explains to his mother कि देखो ऐसा है, मेरा इंटेंशन ये है, मेरा पर्पस जिंदगी का, अवतार का पर्पस ये, मैं घर के लिए नहीं पैदा हूँ. से आप जानते हैं ना, सन्यासी घर के लिए नहीं पैदा होता, सन्यासी सारे विश्व का होता है. सो यू कैन नॉट कन्फाइन मी टू द हाउस. माई आइडिया ऑफ हाउस इज डिफरेंट. मेरा घर चार दीवारों से नहीं बनता, मेरा घर चार दिशाओं से बनता है, यू नो, बिकॉज ये आइडिया वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा, सारी पृथ्वी मेरा घर है. हर एक मेरा रिश्तेदार है, मेरी एक माँ नहीं है. हर एक माता मेरी माँ है, मेरी बहन है, हर एक जन मेरा बंधु है. सो दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड सन्यासी हैज, यू नो. सो समवेयर ही इज सेइंग दैट आई एम बॉर्न विद दैट एटीट्यूड, सो डोंट कन्फाइन मी इनटू द स्मॉल प्लेस, क्योंकि मैं करने के लिए आया हूँ, काम नहीं कर पाएगा. श्री गुरु एक्सप्लेन देम अबाउट द इंटेंशंस एंड पर्पस ऑफ लाइफ. और उनको कहता है, जब माँ बाप कहते हैं कि तू जाएगा तो हमें कौन संभालेगा, अरे मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव दैट एक्सपेक्टेशन कि मेरा बच्चा संभालेगा. अभी कितने संभालते हैं हम देखते हैं आजकल, फिर भी हमारा मोह नहीं छूटता. सो बेसिकली ऐसा नहीं कि बच्चा है तो तुम्हें संभालेगा ही, कोई जरूरत नहीं है. वाई आर यू एक्सपेक्टिंग दैट ऑल्सो फ्रॉम द चाइल्ड, है ना. ओनली बिकॉज आपने इसको बचपन में संभाला, दैट डजंट, ये सौदा तो नहीं हो सकता. डोंट, लाइफ इज नॉट अबाउट व्यापार, लाइफ इज नॉट अबाउट सौदा कि मैंने तेरे लिए के लिए किया, अभी तुम मुझे एक संभालना चाहिए. आई थिंक इफ समबडी सेज दैट इज रॉन्ग. सो ही एक्सप्लेन्स टू देम एंड ही सेज दैट ओके, ऐसा तुम्हारा प्रॉब्लम है ना, तो तुम्हें 4 बच्चे होंगे, 4 पुत्र होंगे और 1 कन्या होगी. मैं आशीर्वाद, because he is an avatar, he can create situations, you know, and they will look after you, don't worry. मैं इसके लिए नहीं पैदा हूँ. Like, you know, there are 4 brothers, one person goes to army, so he cannot keep on thinking about his parents. अभी 3 बच्चे हैं घर में, संभालेंगे तुम्हें. हर एक घर में, जैसे गुरु गोविंद सिंह कहा करते थे कि घर में से एक व्यक्ति, एक बच्चा मुझे फौज के लिए देना. अगर सब लोग घर में बैठे रहे तो सीमा का सुरक्षा कौन करेगा. एवरी पेरेंट विल थिंक, नहीं मेरा बच्चा घर में ही रहना चाहिए, स्कूल में जाना चाहिए, शादी करना चाहिए, उसको बच्चे होने चाहिए. नहीं, ये सारी तो हर एक के सपने होते हैं ना, लेकिन थोड़ा तो तुम्हारे सपनों को डाइल्यूट करो. एक बच्चा तो कम से कम देश की सेवा के लिए देना, नहीं तो देश की सीमाएं खुली हो जाएगी, घर कहाँ संभालोगे तुम. सो समवेयर व्हाट गुरु गोविंद सिंह जी से, कि हर घर में एक तो सोल्जर होना चाहिए ताकि देश की रक्षा हो. हर घर में एक तो आध्यात्मिक होना चाहिए ताकि ये सारी जो पुण्य है, सारा जो वो संभालेगा तुम्हें. दैट कॉन्शियसनेस शुड बी देयर. सो ही एक्सप्लेन्स एंड ही सेज दैट ठीक है, तुम्हें 2 बच्चे होने तक मैं रुकूंगा, और मैक्सिमम 1 बरस. ही नोज, ही प्लान्ड एवरीथिंग. और ऐसे ही 1 बरस में उनको ट्विन हो जाते हैं, ट्विन बच्चे हो जाते हैं, 2 बच्चे होते हैं. दिस हैपेंस इन द फर्स्ट ईयर विद द बर्थ ऑफ ट्विंस, एंड नाउ ही इज फ्री टू. No, he has fulfilled their wishes. He has
ब्लेसिंग दिया उनको, and for the first time a small child is blessing the parents. See, this is the power of spirituality, this is the power of Avatara. Let's go to the next one. Next one. पहले मेरे ख्याल से क्या है उसमें. Many children do not. Okay. His mother gives him a discourse on 4 ashram. Mother उसको बहुत समझाने की कोशिश की कि भाई देखो ये संन्यास आश्रम होता है, लास्ट में होता है, तुम्हें पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में जाना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी. लाइक अ टिपिकल मदर, यू नो, शी इज गिविंग, कंसीडरिंग हिम टू बी अ टिपिकल बॉय, कि भाई तुम्हें एक अच्छे बच्चे जैसे पहले ब्रह्मचर्य होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए, बाद में ग्रेजुएट हो जाओ, बाद में शादी करनी चाहिए, गृहस्थाश्रम होना चाहिए, है ना, बाद में वानप्रस्थाश्रम, तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम्हारे पोते होंगे, तुम्हें घर में रहना पड़ेगा, उनको कौन ये करेगा, सलाह कौन देगा, उनको स्कूल से कौन लाएगा, है ना, आजकल जो चल रहा है हम देख रहे हैं. और बाद में सब होने के बाद, वैराग्य आने के बाद, यू नो, संन्यास आश्रम देना. सो दैट इज अ टिपिकल लैडर ऑफ संन्यास. एंड द गुरु laughs and says this is for a common man. See, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना कॉमन मैन के, जो कानून होते हैं, जो कायदे होते हैं, जो आश्रम होते हैं, फॉर द कॉमन मैन. द कॉमन मैन इज टू फॉलो दिस लैडर, यहाँ से वहाँ. लेकिन मैं कॉमन नहीं हूँ ना, मैं अवतार हूँ, मैं कुछ काम के लिए आया. सो आई कैन नॉट गो थ्रू दिस होल थिंग. He has a different purpose of life and had to jump to sannyas straight. I have to skip. मैं ब्रह्मचर्य आश्रम में नहीं जा सकता, मैं गृहस्थ आश्रम, because I don't have that time. And he talks about the impermanence of the body and the flow of life so beautifully. I think this is probably the apex point of Guru Charitra to begin with itself. He talks about everything is, you know, just changing, everything is impermanent. कोई परमानेंट है नहीं, तो कुछ मोह में क्यों अटकते हो. मेरा भी शरीर का कोई भरोसा नहीं. वो कहते हैं उनको कि मेरा शरीर का कोई भी भरोसा नहीं है, क्योंकि तुम मुझे रखोगे, लेकिन क्या गारंटी है कि मैं तुम्हारे संभालूंगा आगे. मैं बचूंगा नहीं बचूंगा वही पता नहीं, तो कौन से सपने देख रहे हो तुम. एंड दैट इज व्हाट ही टॉक्स टू हर, एंड दैट इज अ ब्यूटीफुल उपदेश ही गिव. एंड ही टॉक्स अबाउट द इम्परमानेंस एंड द फ्लो ऑफ लाइफ. ही सेज जैसे टाइम जा रहा है, एक एक क्षण इंपॉर्टेंट है साधक के लिए. सो यू नो टाइम टू पास. आर यू गेटिंग दिस? So don't waste your time. That's Sri Guru is saying right from that age and from that stage. Okay, somewhere every moment for a sadhak is important. बाकी लोग अपना टाइम पास कर सकते, बाकी लोग can play games, बाकी लोग can do whatever they want, but that is not. You are born with a particular mission. You know, he talks about the impermanence. This is probably one of the most powerful messages. Then he stays there, as I said, for 1 year. वो एक बरस में और बहुत सारे वेदा सिखाने. At the age of 7 he starts teaching. See, he was a born teacher. See, some teachers are born teachers. He was one of them. You know, he doesn't have to go and get the degrees or something. He came with the prajna, he came with the knowledge, he came with the Vedas. And most of his students were senior in age and knowledge. तो लोग जमा होते थे आजू बाजू के, scholars आते थे, and they were flabbergasted with his knowledge. तो कहाँ से आता पता नहीं, स्रोत चलता रहता था, फ्लो चलता रहता था. And he told his parents that 30 बरस के बाद फिर एक बार तुम्हें मिलने आऊँगा, अभी मैं बद्रीवन की तरफ जा रहा हूँ. एंड ही वाज वेरी स्ट्रॉन्ग अबाउट इट, वेरी क्लियर अबाउट इट. आप जैसे चित्र में देख सकते हैं, ही जस्ट मूविंग विद हिमसेल्फ एंड एवरीबडी. माँ बाप भी उसको छोड़ने के लिए आ रहे हैं, बिकॉज यू नो दे आर फुलफिल्ड. 2 बच्चे दिए हैं, आशीर्वाद मिला है, 30 बरस के बाद आने का वादा किया है, एंड ही इज गोइंग अल्टीमेटली टू मेक हिज पेरेंट्स प्राउड. हर बच्चा प्राउड नहीं कर सकता. सो दिस ये त्याग है उनका भी, उन्होंने भी कोऑपरेट किया, बिकॉज दे रियलाइज, एंड एवरी पेरेंट शुड रियलाइज व्हाट द चाइल्ड इज गुड एट एंड सपोर्ट हिम. नहीं केवल हमें चाहिए, हमें देखने के लिए कोई चाहिए, स्वार्थ में अगर श्री गुरु को पकड़ के रखते देते शायद सारी दुनिया के ऊपर अन्याय हो. सो समवेयर दिस इज अ वंडरफुल थिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर अध्याय. नेक्स्ट वन प्लीज अश्विनी. नाउ दैट इज वेयर द फर्स्ट चैप्टर, 11th चैप्टर इज ओवर. अभी 12वें अध्याय पे हम आते हैं. देखते हैं यहाँ से आगे क्या होता है. The first thing what he does, he goes to Varanasi, old Kashi. पुराने जमाने में उसको काशी कहा गया. He reaches Varanasi and does a penance there. वहाँ अपनी तपश्चर्या शुरू करते हैं, ध्यान धारणा शुरू करते हैं. और आप जानते हैं कि वाराणसी इज ए वेरी पायस प्लेस, और वहाँ पे बहुत सारे साधु, ऋषि, मुनि, महात्मा लोग आते हैं, साधक लोग होते हैं, सिद्ध होते हैं. तो हमेशा बाकी साधक सिद्ध देखते थे, इतना सा बच्चा 7-8 वर्ष का आया है, बट उसका तेज कितना है, उसकी आभामंडल कितनी है, उसकी एनर्जी कितनी है, और जिस तरह से वो कर रहा है ना सारी साधना, जैसे सब जानता है. सो दे वर वंडरिंग दिस गाय इज समथिंग यूनिक. और उनके मुख्य जो थे स्वामी
कृष्ण सरस्वती, हमेशा उनको देखते थे। उनको बड़ी अजीब लगता था कि ये बच्चा कुछ तो खास है, ये आम बच्चा नहीं। He is watched by some senior sadhaks who are overwhelmed by his energy. And Swami Krishnananda Saraswati approaches him with the suggestions. कृष्ण सरस्वती उसके पास आते हैं और बोलते हैं, बेटा यू लुक डिफरेंट, तो एक काम करना, तो संन्यास ले लेना। और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसको कहा, क्यों संन्यास लेना? बोले देखो आजकल सन्यासी का नाम बदनाम हो गया है, यू नो, बिकॉज सन्यासीज आर नो लॉन्गर रिस्पेक्टेड बाय द पीपल। वो तो वेशधारीण हो गए। जैसे गुरु गीता में भगवान शिव पार्वती को कहते हैं कि जो वेशधारीण है, दाढ़ी बढ़ाई है, कमंडलू है, गले में मालाएं हैं, भस्म लगाया हुआ है, भगवे कपड़े पहने हैं, लेकिन अंदर सन्यासी का एक भी लक्षण नहीं है। इसलिए सन्यास ये कोई बाहर की अवस्था नहीं है, सन्यासी भीतरी अवस्था है। तुम क्या पहनते हो, कैसे पेश आते हो, उससे ज़्यादा तुम क्या हो भीतर, तुम्हारी एटीट्यूड सन्यासी होनी चाहिए। सत्न्यास, सत्य के साथ रहने वाला। न्यास का मतलब रहने वाला, सत्य का मतलब सत्य है, भगवान। तो हमेशा हर क्षण सत्य के साथ, भगवान के साथ रहते हो, सन्यासी। उसमें क्या पहनता है क्या नहीं पहनता उसकी आदत नहीं। सो समवेयर ही सेज दैट आज सन्यासियों की इतनी हालत बुरी हो गई, धर्म की निंदा हो रही है, लोग अधर्म की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज धर्म देयर इज नथिंग टू रिस्पेक्ट, और सन्यासी लोगों ने ही रिस्पेक्ट कमा दिया है। तो आदि शंकराचार्य ने तो 2500 बरस पहले काम किया था, जब धर्म को ग्लानि आई थी, सन्यासी लोग सन्यासी जैसे नहीं बर्ताव करते थे। तो दिस इज व्हाट विल हैपन। कृष्ण सरस्वती बिकेम हिज गुरु एंड इनिशिएटेड हिम एज हिज डिसाइपल। तो उन्होंने कहा कि मुझे संन्यास तुम्हें लेना पड़ेगा, तुम किससे लेना चाहोगे? तो उन्होंने कृष्ण सरस्वती का कहा, आपसे सजेशन है तो आपसे ही मैं ले लेता हूँ, बिकॉज इन यू नहीं। जैसे कृष्ण ने भी संदीपनी से दीक्षा ली थी, राम ने भी वशिष्ठ से ली थी। भगवान के अवतार होने के बावजूद उन्होंने एक गुरु किया था शरीर में, फॉर्म में, है ना। सो इनको भी पता था कि कृष्ण सरस्वती भले गुरु से ज़्यादा यहाँ शिष्य का अधिकार था, फिर भी एक स्टैम्प चाहिए, एक परंपरा की इज्जत होनी चाहिए, हायरार्की चाहिए। सो ही रिस्पेक्टेड हिम एंड ही एक्चुअली हैड अ ब्लेसिंग्स, यू नो, कि ऐसा शिष्य मिलना ये हर गुरु के लिए मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है ना। एंड गुरु का मोक्ष हो गया ऐसा शिष्य पाने से, है ना। सो समवेयर दैट इज व्हाट हैपेंड। लेट अस गो टू द नेक्स्ट एंड फाइंड आउट कि व्हाट इज अधिकार इनका क्या है ना। ये जैसे वाराणसी दिखाई कि वाराणसी में ये सारी घटना हो गई। वाराणसी में उन्होंने संन्यास ले लिया एंड संन्यास धर्म के अनुसार वो आगे घूमने निकले। लेट अस सी व्हाट हैपेंस देयर आफ्टर। बस लेट अस अंडरस्टैंड, कृष्ण सरस्वती ने उनको संन्यास दिया। ये कृष्ण सरस्वती का स्थान, ये नोबल ट्रेडिशन, ये गुरु की जो परंपरा है यहाँ पूरी दी है गुरु चरित्र में। तो उसमें कृष्ण सरस्वती कहाँ फिट होते हैं? गुरु का मुख्य जो स्थान है वो शिव है, आदिपीठ कहा जाता है। वहाँ से सारे साधना का स्रोत वहाँ से शुरू है, वो गंगोत्री है साधना की। उसके बाद में विष्णु है आदिपीठ के, उसके बाद में चतुर्वक्त्र गुरु मूलापीठम में है। बाद में आते हैं वशिष्ठ, वशिष्ठ के शिष्य शक्ति से आगे परंपरा पराशर ने की, पराशर के आगे व्यास के बाद में शुक के बाद में गौड़पादाचार्य, आपने सुना होगा उनका नाम। गौड़पादाचार्य के जो शिष्य थे गोविंदाचार्य, और ये गोविंदाचार्य आदि शंकराचार्य के गुरु बने। आदि शंकराचार्य बिल्कुल पैरेलल जाते हैं नृसिंह सरस्वती के, बिल्कुल साथ साथ उनकी जिंदगी। और जब कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य भी ऐसे घर छोड़ के निकले द वेरी यंग एज ऑफ 6 or 7, एंड ही आल्सो हैड अ स्मॉल लाइफ। एंड वो जब गए ढूंढते तो जैसे उनके गुरु जो थे गोविंदाचार्य, उनको पता चला कि शिष्य आ रहा है, तो उसने पूछा कि कौन आया। दैट टाइम ही नरेटेड दैट शिवोहम, अपना जो वर्णन दिया, अपनी जो पहचान दी। एंड देन गोविंदाचार्य रियलाइज ही इज द वन, जो पहचान से पता चला। उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, शंकर नहीं बताया, उन्होंने कहा कि मैं ये हूँ शिव, मैं खाली शिव हूँ, पवित्र हूँ। एंड दैट इज दैट गोविंदाचार्य। उन्होंने आदि शंकराचार्य के पास से ध्वजा दी। आदि शंकराचार्य के बाद विश्वरूपाचार्य आ गए, उसके बाद में ज्ञान बोधगिरी। कितनी लंबी परंपरा है। ज्ञान बोधगिरी के बाद सिंहगिरिया, उसके बाद में ईश्वर तीर्थ के बाद नरसिंह तीर्थ,
नरसिंह तीर्थ के बाद विद्या तीर्थ ने परंपरा आगे बढ़ाई, बाद में आ गए शिव तीर्थ, बाद में आ गए भारती तीर्थ, कितने सुंदरता है इसमें, बाद में आ गए विद्यारण्य स्वामी, बाद में श्रीपाद मुनि, बाद में आए विद्या तीर्थ, दूसरे विद्या तीर्थ पहले आके गए थे 6 पीढ़ियां पहले, बाद में मणियानंद आ गए, मणियानंद के शिष्य हो गए देवतीर्थ सरस्वती, देवतीर्थ सरस्वती के बाद संन्यास का अधिकार, दीक्षा का अधिकार सरस्वती यादवेंद्र, और फाइनली यादवेंद्र के शिष्य निकले कृष्ण सरस्वती। कितना अधिकार है उनका। और श्री गुरु को दीक्षा देने के लिए अधिकार तो होना चाहिए, ऐसा ही गुरु चाहिए उसको। भगवान शिव से निकली हुई परंपरा वहाँ समर्पित होती है श्री गुरु में, श्री नरसिंह सरस्वती। सो लुक एट दी लाइनेज ना, जैसे हम रेकी में कहते हैं ना उसी परंपरा, वैसे परंपरा है, मास्टरों की परंपरा है। सो समवेयर वी नीड टू अप्रिशिएट, और ऐसे कृष्ण सरस्वती ने उनको दीक्षा दी। लेट्स सी व्हाट हैपेंस फर्दर। इसके बाद उन्होंने ही केम टू बद्रीवन, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में जैसे अभी का बद्रीनाथ का मंदिर है, लेकिन बद्रीवन उस टाइम जंगल था, उन्होंने उनको वहाँ तपस्या की, जहाँ अर्जुन और कृष्ण ने साथ में तपस्या की थी हजारों वर्ष पहले। उसके बाद में बद्रीवन में आ गए। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। और वहाँ से वो उनकी यात्रा आगे चली गई। ट्रेडिशन कंटिन्यूज एज श्री गुरु मूव्स टू बद्रीवन एंड फ्रॉम देयर कम्स टू अनंत तीर्थ। गंगा सागर तक गए, जहाँ गंगा मिलती है समुद्र को, कलकत्ता के उधर, एंड वहाँ से प्रयाग में आ गए, वेरी मीट्स डिसाइपल। इसके पहला डिसाइपल मिला माधव। Madhava was the first disciple of Sri Nrsimha Saraswati, and that is where it's a very historical event. And Madhava gets initiated by Sri Guru. He is so blessed, and he was called Madhava Saraswati, जो उनके साथ में हमेशा हमेशा के लिए रहा। और ये अध्याय का नाम है श्री गुरु चतुर्थाश्रम ग्रहणम। पहले 3 आश्रम को स्किप करके डायरेक्ट चतुर्थाश्रम का ग्रहण किया उन्होंने, एंड दिस इज वेयर द अध्याय गेट्स ओवर। इसके बाद में उनकी सारी लीलाएं शुरू हो जाएगी 13वें अध्याय से। सो आर यू गेटिंग दिस? उनका अधिकार कितना है, उनके जन्म से लेकर यहाँ तक पहुँचा है। या श्री दत्तगुरु इज बेसिकली विष्णु, शिव, चतुर्वक्त्र ब्रह्मा, ये तीनों का मिलकर तो दत्तात्रेय है। ये दत्तात्रेय का अधिकार आदि गुरु से लेकर ये गुरु तक है, मूल गुरु तक। जैसे ब्रह्मा मूल गुरु है, आदि गुरु शिव है, विष्णु है, तो उनके साथ साथ दत्तात्रेय, ये तीनों का संगम है। तीनों एनर्जीज इकट्ठी होती हैं, तो वहाँ आदि गुरु भी है, महागुरु भी है, और वहाँ जिसको हम कहते हैं मूल गुरु। सो समवेयर वी हैव रीच्ड हियर। सो यहाँ हमारी आज की कथा समाप्त होती है। अगर किसी को सवाल है इसके बारे में, सो देयर आर सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन दिस 2 अध्याय। जैसे हमने देखे कि जनोई का क्या महत्व है, संन्यास का क्या महत्व है। थैंक यू शंकर जी। So this is how exactly it's a very interesting to understand. कितना गहराई में जितना उतरोगे ना, उतना गुरु चरित्र का ज़्यादा अभ्यास होगा, और जितना ज़्यादा अभ्यास होगा उतना साधना के लिए बड़ा अच्छा होगा। So any questions about whatever we talked? Yes, Vaishali, now you can open the questions. Yes, Guruji, I see 2 hands, so I will start. Meenakshi, you can. मीनाक्षी जी, मीनाक्षी चौकसी, आप सवाल पूछ सकते हो। I mean, sometimes she by mistake. So I will move to Rajesh Kumar. राजेश जी। हाँ राजेश जी बोलो। Can I request Ashu to stop sharing her screen? Ashwini, the screen, yeah. Yes. हेलो, जय गुरुदेव गुरुजी। जय गुरुदेव राजेश, बोलो। गुरुजी, जैसे थ्रेड सेरेमनी मेल के लिए होता है, तो फीमेल के लिए ऐसा कौन सा वो होता है जो मतलब इन पैरेलल हो उसके? ऐसे कहा जाता है जब लेडीज सीखती थी ना, जैसे मैत्रेयी थी, साध्वी लोग जो थे, अनुसुईया थी,
ये सारे लोग जो विदुषी हो गए, यानी वेदों का अभ्यास करने वाली थी, उनकी तो जनेऊ हुई करती थी। सो व्हाट, जैसे मैंने समझा ना कि 8वें बरस में जैसे ट्रांजिशन होता है, लेडीज में भी होता है। एक्चुअली द गर्भाशय की बनने की शुरुआत वहां से होती है, एंड द प्रोसेस गेट्स कंप्लीट बाय द एंड ऑफ 12th ईयर्स। सो दे आल्सो गो Okay. टू लॉट ऑफ ट्रांजिशन। बट अगर आप देखोगे उस काल में, द गर्ल्स नेवर यूज्ड टू गो टू द स्कूल्स, एक्सेप्टिंग जैसे मैंने मैत्रेय, गार्गी और ये सारे विदुषी लोग की बात की, अनुसुईया वगैरह, they were very few. Okay. But most of them used to work a lot, very hard work for the girls. दूर से पानी लाना, खेती में जाना. So they used to consume that excessive fluid, adrenaline या जो बाकी जो Okay. aggressive chemicals हैं, पित्त जिसको कहते हैं normally. So they used to consume. The idea was consuming. यहाँ consume नहीं होता है ना, वहाँ प्रॉब्लम। और आज के Okay. बच्चों के प्रॉब्लम का मेन कारण मुझे दिखता है, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर सिटिंग, दे आर नॉट यूजिंग देयर बॉडी टू अ ग्रेट एक्सटेंट। और मैं Right. देख रहा हूँ जो बच्चे कराटे में जाते हैं या मार्शल आर्ट्स वगैरह सीखते हैं इस उम्र में, दे नॉर्मली आर वेरी माइल्ड बिकॉज दे कंज्यूम्ड। Right. उनके सारे बहुत सारे ये नहीं होते हैं ना, वायलेंस डजंट more the power like that, I think the lesser they are violent. In fact, they are much calmer and cooler because they are consuming that. जब हम लोग कराटे सीखते थे, हम लोग जूडो सीखते थे, I know what happened at the end of it. Absolutely everything is gone out, पसीना पसीना होके, you know. So somewhere the whole idea of violence was lost. They were warriors all right, but they were not violent. Martial artists are warriors, but they are not violent. They are very compassionate. No, because of So that, they can control. This is one of the reason, गुरुजी, जब जैसे हम लोग ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, एक्सर्ट करते हैं, so our heart rate rather becomes more stable and low rather than going up. Because it is about the chemicals, you know, which actually accumulation is a problem. इंसान की जिंदगी में accumulation का एक ही problem है. That may also lead to cancer. That may lead to your क्या बोलते हैं उसको? What is that? Cardio problem. पेट का problem नहीं, पेट का भी problem होता है ना. Okay. Suddenly, I mean, that is what, you know, पेट में, I mean, you are not secreting properly the. Okay, constipation. Some kind of that. So when you accumulate a lot of things, you know, that is what the tumors are formed. That is where all the problems, mind के भी problem accumulate. गांठ बनती है ना, the गांठ is nothing but accumulation of, you know, chemicals. So somewhere one has to appreciate that. जैसे flow चल रहा है, so it's not about hormones, it's about using the hormones. If you use, हम हमेशा कहते हैं ना, एड्रेनलिन जो सुबह 10 से दोपहर को 4 तक बनता रहता है, 10 से 4 जो काम करेगा ना, सोएगा तो उसको पित्त होगा, उसको सर्दी होगी, उसको साइनस होगा, because you are not using that adrenaline during that time. Okay. 10 से 4 में काम करेगा ना, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. That is the time. Say, yes. Right. और वही शाम को अगर काम करेगा तो उल्टा असर, मतलब that is what whole cycle is. That's right. You are going against the cycle. When the adrenaline is not there, you're trying to use it, but you're going to the reserves. गाड़ी भी बहुत टाइम रिजर्व में चलाओगे तो मशीन इंजन खराब हो जाएगा. Right. So somewhere I think. Right. Thank you, Guruji. Yes. Anybody else? Yes, Guruji. I see Riddhi. I will unmute her. Riddhi. जय गुरुदेव गुरुजी, हर्षिल यार. हाँ हर्षिल, जय गुरुदेव, बोलो. गुरुजी क्वेश्चन ऐसा है कि जनोई जो क्रिया हम करते हैं वो केवल ब्राह्मण पे करते हैं. नहीं, वो अगर आप देखो, पहली चीज तो ध्यान में रखना, ब्राह्मण ऐसा कुछ नहीं होता, विद्यार्थी होता है, उसको ब्राह्मण मत कहना. देन एवरीथिंग विल फॉलो. ब्राह्मण का मतलब विद्यार्थी, ब्रह्म का मतलब विद्या, और उसकी अभ्यास करने वाला विद्यार्थी. हमारे भीतर ऐसा कुछ घुसा दिया है राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स कि तुम्हारे भीतर 4 वर्ण है तो 4 जन्म ऐसे होते. जन्म से नहीं होता है, कर्म से होता है. नहीं, अगर आज सब ब्राह्मण है क्योंकि सब स्कूल में जाते हैं, सो देयर इज नथिंग नॉन ब्राह्मण. बट मैं उनको ब्राह्मण नहीं कहूँगा, वो जन्म से ब्राह्मण कोई नहीं होता, ना जन्म से कोई शूद्र भी होता. बेसिकली इट इज डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू डू इन लाइफ. कैसे हो गया कि जैसे धीरे धीरे जन्म के बाद हम वही प्रोफेशन करने लगे, इसलिए उस नाम कुल का ही नाम हो गया. सोने के काम करने वाले का बच्चा भी सोने का काम करने लगा तो सुनार उसको बोलने लगे, सोनी बोलने लगे.
because he decided to do that. But supposing he doesn't do that, he's no longer a Sony. If he does something engineering, so somewhere ये होता रहा, and unfortunately हमने बिगड़ते रहे हम इसको. लोगों ने अपने को कहना शुरू किया तुम्हारे में वर्ण है, तुम्हारे ऐसे. वर्ण is a very simple word. वर्ण means division, segment, class. नहीं, जैसे हम कहते हैं ना कि गौर वर्ण, पीता वर्ण, नहीं, ये जो है ना जिसका रंग गोरा है वो एक क्लास है, जिसका रंग पीला है वो एक क्लास है. नील वर्ण, वर्ण का मतलब क्लास, सेगमेंट. कौन से वर्ण में ना, जैसे भी क्लास होते थे, 4 क्लास होते थे हर स्टैंडर्ड में, वर्ण एक, वर्ण बी, है ना. तो समवेयर आई थिंक वी हैव मेड अ मेस ऑफ थिंग बिकॉज हम समझे नहीं. सो पहले समझना कि ब्राह्मण का मतलब है विद्यार्थी, वॉट एवर द पीपल में से, जो ब्रह्म का अभ्यास करता है, ब्रह्म की खोज करता है, सत्य की खोज करता है. बिकॉज पढ़ाई का मतलब सत्य की खोज ही है. जो मालूम है उसको ढूंढना, ये पढ़ाई नहीं है, ये गलत हो रहा है हमारा. नहीं, तुम वही रट रहे हो जो मालूम है तुम्हें. इसलिए आजकल के बच्चों को पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, बिकॉज देयर इज नथिंग न्यू. You are actually, the idea of education is not research. It came from the Western world. Idea of education is a search. That's why साधक को सीकर कहा जाता है. वो सर्च करता है, ढूंढता है. नहीं, पुनर् जो ढूंढता है ना उसको रिसर्च कहते हैं. जो ऑलरेडी है, तुम्हें मालूम है, लेकिन गुम हो गया, तुम उसको ढूंढ रहे हो, नया कुछ नहीं कर रहे हो. You are researching for your key which you have lost. You are researching for your money which you have lost. सर्चिंग एंड रिसर्चिंग दो चीजें हैं ना. अध्यात्म में सर्च को ज्यादा महत्व है, जीवन में सर्च को ज्यादा महत्व. सर्च में तुम आगे बढ़ते हो, रिसर्च में वही घूमते रहोगे. रिसर्च में कोई आगे नहीं बढ़ा. आर यू गेटिंग दिस? न्यूटन वहां बैठ के नहीं, ऐसे सोच के नहीं बैठा था कब फल गिरेगा तब मैं. इट हैपेंड बिकॉज इट सर्च. उसको एक जैसे बच्चे जैसे अरे कैसा हो गया. सर्च के लिए इनोसेंस चाहिए, रिसर्च के लिए इनोसेंस की जरूरत नहीं, नॉलेज चाहिए, नहीं तो रिसर्च नहीं कर पाए. आपने देखा है कि अभी रिसर्च करने वाले नॉलेजेबल होते हैं. कोई भी उठ के नहीं बोल सकता मुझे रिसर्च करना है. सर्च तो कर सकता है. शायद न्यूटन के पास डिग्री थी भी नहीं तब, फिर भी वो सर्च किया. रिसर्च करने के लिए जाता तो डिग्री मांगते उसकी. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो समय ब्राह्मण का मतलब विद्यार्थी है. विद्यार्थी का मतलब बैठ के अभ्यास करना है, और जहाँ बैठ के अभ्यास करना है वहाँ मूवमेंट नहीं है. मूवमेंट नहीं तो सारे जो ये एड्रेनलिन वगैरह है, टेस्टोस्टेरोन, वो तो इकट्ठा हो जाएंगे. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? दैट इज हाउ इट इज. थैंक यू गुरुजी. द्विज, इसलिए उसका पुनर्जन्म है, सेकंड लाइफ. यू नो दैट्स व्हाई, बिकॉज ही इज एक्सटेंडेड. पहला जन्म में 8 बरस एक आया था उसके जिंदगी में ये परिवर्तन, तो उसको आगे बढ़ाया और दूसरा परिवर्तन करवा दिया. परिवर्तन एट विल, नहीं तो ऐसा ही हो जाता है ना. तो कोई पढ़ाई करता ही नहीं. या एनीबॉडी एल्स हैज अ क्वेश्चन? थैंक यू गुरुजी. यस गुरुजी, ऐसी शंकर भी, शंकर जी, शंकर रामन जी बोलो. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. Guruji, it's more of a comment rather than a question. Yeah, please go ahead. It is based on a question which was asked last week about the significance of a tortoise. And if you permit me to share something. Please go ahead. If you have the answer, please go ahead. Share with us. Yeah. So just an observation, when I was reading the Sri Sai Samartha Satcharita, actually in one of the couple of chapters, they talk about how a tortoise, a mother tortoise, actually lays her eggs and actually kind of just watches that eggs with dispassion and moves to the other side of the bank. So Right. just like a mother tortoise just lays the eggs and just glances by a mere glance, treats the eggs and allows the eggs to hatch a pure like a glance of a mother. Sometimes even she doesn't have to glance. The mother tortoise will be very far away, but she has such sensors, some kind of senses. She has that wireless connections with each other. That's why ये जो tortoise है, that is considered to be the third stage of a sadhaka. The first stage is like a बिल्ली, cat. है ना, आपने देखा हो cat का बच्चा है ना, उसका आँख नहीं होती पहले 2-4 दिन, वो देख नहीं पाता because he cannot open the eyes. Okay, so what इसकी मदर क्या करती है, उसको पकड़ के, उसको मुंडी से पकड़ती है और उसको घुमाती है इधर से उधर, and she keeps on changing his location so he is not in danger. नहीं, उसको हमेशा डर रहता है कि उसको कोई खाएगा, but she is very close, physically close. She is holding the child. वैसे गुरु जब शुरुआत होती है साधना में तो शिष्य को पकड़ के घूमता है. आगे जाती है थोड़ी परिस्थिति, शिष्य बड़ा होने लगता है तो मंकी जैसे हो जाता है. आपने देखा मंकी का बच्चा होता है, वो मंकी को पकड़ते है, मंकी नहीं पकड़ती उसको. इसकी मम्मी उसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाती, वो क्लिंग करता है.
So wherever the mother goes, he goes. That is the second stage. जहाँ भी गुरु जाता है शिष्य को उसको पकड़ के रहना चाहिए. Guru is not responsible. And the last stage is the tortoise, as Ramakrishna Paramahansa used to say. कि वो किधर भी रहे, he is connected. You cannot get out. Okay. कहीं भी remote location भी हो तो उसका ध्यान रहता है. So that is the ultimate अवस्था of Guru and Shishya. Yes. 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 Thank you. Thank you. Can you hear me, Guruji? They say 400, 450 years tortoise जीते हैं, you know? And tortoise has a total. Whenever he wants, he can pull the indriyas in, and whenever it's only then he brings out. तो इंसान को ये होना चाहिए कि हमारे इंद्रियों के ऊपर हमारी जीत होनी चाहिए. Now, unfortunately, आज हम देख रहे हैं कि इंद्रिय हमें नचा रहे हैं. नहीं, actually, the whole purpose of tortoise, but I could not understand why it should be only in the temple. Tortoise should be in every road. People should know. हर घर में होना चाहिए. उसको देख के याद आना चाहिए, देखो ये कैसा जी रहा है. He doesn't show off. Only when required, he uses the indriyas, and then again he takes them in. Normally he goes beyond indriya. He can decide when the indriya should come out. इंसान decide नहीं कर पा रहा है. हमें हमारी इंद्रियां नचा रही हैं. Yes. We are directed by our senses. We are controlled by our senses. That is to that extent, yes. नहीं, ये तो है, tortoise का महिमा है. And tortoise, I believe, is as per the Vishnu Purana, is our first avatar. We are exactly like tortoise. 95% shell and 5% sperm. 95% ओवा होती है, अंडा होता है ना, कड़क होता है. That's exactly how it is. So somewhere there is what. Thank you very much for bringing it out. Thank you. Yeah. Thank you so much for the additional sharing, Guruji. And can I just have one more question, if you don't mind? Yeah, please. I was blessed to bear the Janaiva at the age of 9. Yeah, and I had a question. I just had a question on the relationship between Sandhya Vandanam, which I was taught, and Agnihotra. So anything would you share on that? So basically, Agnihotra as well as Sandhya Vandana are to be done in the Sandhya time. Yes. The times are the same. You know, basically twilight time. Sunset के पहले थोड़ा सा, बाद में थोड़ा सा, and in between, and then सूर्योदय का time, सुबह का, है ना? Because normally they say ये जो transition period होता है, ऋतु change बोलते हैं उसको, ऋतु बदल. ये ऋतु बदल में the mind is absolutely what you can say, my mind is weird. My mind is not stable. You know, it goes everywhere. haywire. तो उसको control में लाने के लिए विधि है. You know, that's why you have to chant something, you have to do Agnihotra, you have to do this. Because you know, otherwise the mind is so porous during that time, it can be easily caught away by the negativities all around. It starts speaking of negativities. Marathi में हम उसको कातर वेला कहते हैं. कातर वेला, in the evening, you feel a little lost. Yeah. You know you are no control your body. I mean, this is not only about the humans, but our friend Janardhan Bhai from Chicago, he's a landscaper and he's a gardener. He was telling me even for the plants that happens in the morning and the evening. You know, they become a little lost. They lose their sense. You know, ये जो change होता है ना, transition period is always difficult. And even if you look around the ऋतु बदल जब होते हैं normally outside also when the season change, as per the world statistics, maximum people fall sick during the seasonal change. Yes. If you look at the worldwide statistics, because in a human body, that's why Ayurveda says you have to prepare yourself for a change. That's why अगले महीने में जो होने वाला है उसको जो खाना है आपको वो ये महीने में खाना है. So the body is prepared even before the change strikes it. Oh, okay. It is immune. The whole idea was to develop an immunity for the change. Yes. Yes. And most of the time we cannot handle the change. Yes. The mind cannot handle the change. The body cannot handle the change. Oh. The emotions cannot handle the change. Wherever there's a change, there's a problem. Yes. Are you getting this? Yes. So somewhere the transition is always a problem in life. Yes. Yes. Now I think when we move out of lockdown, there's going to be some problem because again there's a transition after 12 hours. Yeah. And we will not know, we'll lose our bearing. Yes. Are you getting this? Yes. So, thank you for sharing that. Jai Gurudev. Thank you. Jai Gurudev. Very nicely explained, Guruji. There is Anusuya ji. ये दत्तात्रेय की माँ जी तो नहीं है ना? जय गुरुदेव सर. जय गुरुदेव जी. ये नाम पे हमें बहुत इज्जत है. Thank you so much. It's a lovely name. Yes. जिसको असूया नहीं है वो अनसूया है. Yeah, tell me. Yeah.
गुरुजी, मैं गुरु चरित्र पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन वो किस तरह से पढ़ा जाता है, और मुझे दत्त बावनी और गुरु चरित्र के रिलेशनशिप में, मतलब क्या दत्त बावनी बोलते हैं तो गुरु चरित्र जितना ही उसमें ये आ जाता है, ये मुझे जरा थोड़ा पूछना था आपको। मैं ऐसा नहीं कहूँ कि जितना ही आएगा, बिकॉज इट्स एसेंस, इट्स अ शॉर्ट स्क्रिप्ट, एनक्रिप्टेड, संक्षिप्त स्वरूप है ना गुरु चरित्र का, जिसको गुरु चरित्र पूरा 52 अध्याय पढ़ने के लिए टाइम नहीं है ना, नॉर्मली दिस इज अ कॉम्प्रोमाइज एक्चुअली, आई वुड स्टिल से इट इज अ कॉम्प्रोमाइज, सो इट कैन नॉट सब्स्टिट्यूट द ओरिजिनल गुरु चरित्र पठन, क्योंकि गुरु चरित्र पठन में एक जो पेशेंस चाहिए, जो मैं अभी बात कर रहा था, जो एक श्रद्धा चाहिए, बिकॉज यू हैव टू सिट फॉर अ लॉन्ग आवर्स, योर ऑल द इंद्रियाज आर कन्वर्ज्ड ऑन दैट, that is a beautiful thing. And Guru Charitra के लिए कई चीजें करनी पड़ती हैं. You have to eat only once. You have to sleep on the mat, because you have to go into the non-comfort zone. Because when you are in the non-comfort zone, you are free from ego. See, comfort and ego are very close to each other. तो हम अपने शरीर के पैटर्न्स तोड़ रहे हैं, मन के पैटर्न्स तोड़ते हैं, और जब पैटर्न्स टूटते हैं, उसका मतलब ईगो टूट रहा है, बिकॉज पैटर्न्स का बेस ईगो है. सो समवेयर वो जो एक पढ़ने की एक तरह है, नेक्स्ट लेक्चर में आप शायद उसको करेंगे, आई एक्सप्लेन टू यू हाउ इट इज टू बी रेड, बट राइट नाउ यू कैन जस्ट गो बाय गुरु चरित्र में लिखा है हाउ टू रीड दैट, इसी तरह से आप जाओगे उसके अनुसार, तो मेरे ख्याल से वो भी अच्छा होगा. I'll tell you next week, next Thursday, we'll discuss about that also for 10-15 minutes. कि इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इसे क्या करना चाहिए एक बात है, लेकिन अगर आप नहीं समझोगे क्यों करना चाहिए तो एक रिचुअल बन जाएगा. And I don't want anybody to follow rituals. I want everybody to do something with knowledge, with wisdom. तो उसमें मजा है. लेकिन गुरुजी ऐसे हो सकता है कि हम 11 या ऐसे कुछ भी थोड़ा जितना पढ़ सके रोज थोड़ा थोड़ा करके, ऐसे हो सकता है? देखो एक साइंस है, से गुरु चरित्र also is a science. उस हिसाब से उन्होंने पूरे 52 अध्याय को 7 दिन में डिवाइड किया है, ताकि हर दिन में 1000 के आसपास उसकी स्टैंजा आती है, वो भी. So 1000 OV, 1100 or something like that. Totally 7700, 7800 के आसपास OV है. So every day you are creating that kind of a level of energy. उस हिसाब से उसको रचा है, उस हिसाब से उसको डिजाइन किया है. So it's a designed over 7 days. So it cannot be ignored. So उसको respect देके every day 2.5 hours it will take for a new person, maybe 1.5 hours for regular reader. But then you have to stop everything else. मैं मौन में रहना पड़ेगा, because you know all those what non-linear or the subtle experiences, उसको स्वीकारने के लिए मन को भी थोड़ा सटल होना पड़ेगा, बॉडी को भी सटल होना पड़ेगा. They are very gross, they are very rigid. और rigidity टूटता है, जब पैटर्न्स टूटते हैं rigidity टूटते हैं, हमारे जो नियम होते हैं वो टूटते हैं तो rigidity टूटते हैं. So somewhere we need to be flexible enough, you know, to get those experiences. जी जी. Very subtle experience, because ना जब बॉडी तरल बनती है, मन तरल बनता है ना, तो छोटी छोटी चीजों को पकड़ सकता है. जी. जैसे सब बंद करके आवाज बंद होती है, सब छोटी सी आवाज भी सुनाई देती. Sometimes you can even listen to some old song in your own mind with music. जी. It is already there. Everything is everywhere. Are you getting this point? लेकिन हम उसको कनेक्ट नहीं कर पाते because we are so much engrossed. But when engrossment बंद हो जाती है, तो ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं. तरलता लाने के लिए किसी को मिलना नहीं, किसी से बात नहीं करना, है ना? अग्निहोत्र करना, रेगुलर प्राणायाम करना, ये सारा जरूरी है, because you are preparing the body and the mind for those experiences. जी. Even जैसे एक एस्ट्रोनॉट को ऊपर भेजने के पहले, they are not just sent like that. They have to go for training. Weightlessness का एक अभ्यास होना चाहिए ना. They have their own diet. They have their own suit to wear. They have to understand how to take that, consume that oxygen only from the cylinder. ये सारी तैयारी होगी. जी जी. Yeah, thank you, Guruji. Yeah. Yes, thank you. Yes, Preeti Sawant has some question. Yeah. Yes. Yeah, there's no comment. Thank you. Yes, anybody else would like to? Hina. हाँ, हिना कोई सवाल है? जय गुरुदेव गुरुजी. जय गुरुदेव. हिना बोलो. ओके, मेरे को एक क्वेश्चन था कि हम हमेशा 3 का क्या महत्व होता है लाइफ में? See, 3 is something what mind understands. माइंड के ऊपर एक चीज है, अद्वैत है. अद्वैत खुद को एक्सप्रेस करता है, वो 3 में करता है हमेशा. उसमें से 2 व्यक्त होते हैं, एक अव्यक्त होता है. फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और उसके भीतर एक पॉइंट होता है जहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव शुरू होती है. सो समवेयर ये 3 के साथ मन जुड़ता है, क्योंकि मन को 2 या 4 नहीं समझता, एक भी नहीं समझता. नहीं, वो मन को हमेशा 3 की खोज रहती है. दैट्स व्हाई हर चीज में आप देखोगे कि हमें जैसे बचपन में क्वेश्चन पेपर भी आता था,
तो उसमें अगर लिखा होता था एनी 3 out of 5 वी वर वेरी हैप्पी। नहीं, मैं बहुत कितने बरसों से मैं रिसर्च कर रहा हूँ, सो वी यूज्ड टू रिसर्च पीपल विद क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन आप देखते हैं कि सर्वे होता है ना, उसमें साधारण ऐसा है कि ऐसा ऐसा होगा, यस और नो। नहीं, अगर यस और नो दोगे ना तो लोग उसको रिस्पॉन्स नहीं देते। हमने खुद फाइंड आउट किया यस, नो एंड मे बी, तीसरा डालो तो लोग रिस्पॉन्स करते हैं, बिकॉज सम और अदर मेंटली वी आर वेरी वेरी कंफर्टेबल विद नंबर 3। द माइंड इज ऑलवेज कनेक्टेड। सो हर चीज को हमने 3 में डिवाइड किया, काल को डिवाइड किया, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, है ना, अपने त्रिदोष को डिवाइड किया, त्रिगुणों को डिवाइड किया। एवरीथिंग इज 3 बिकॉज द माइंड कैन रिलेट, ह्यूमंस कैन रिलेट, विदाउट 3 वी कैन नॉट रिलेट। Are you getting this point? So 3 is a company, is a beautiful way to go about, है ना, इसका एक शास्त्र है ना, हर चीज 3 की बनी है। एक कलर 3 में आ जाते हैं ना, 3 basic colors. So every time the one wants to express, it expresses to 3 because the mind understands. माइंड ने उसको बना दिया है। इसलिए जो देखो कोई भी धर्म में शादी होती है, तलाक होते हैं, वो भी 3 बार करना पड़ता है ना, सावधान 3 बार बोलना चाहिए हिंदू संस्कृति के शादियों में। वहाँ पे इफ लुक इनटू क्रिश्चियनिटी, आई डू बोलना चाहिए, है ना। वो जो निकाह होती हैं, तलाक होते हैं ना, तो उसमें भी 3 बार कबूल 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 बोलना। इसी 3 बार अगर नेटिव अमेरिकन भी अगर आप देखोगे, दे ऑलवेज will give you 3 times, they will give you a gift. Once they'll take it back, second they will take, and third time because you are conscious. 3 मतलब you are consciously doing the thing. कर्म हो गया। अभी now you cannot transfer responsibility to somebody else. You are chosen. नहीं, 2 बार तुम करते कि शायद मुझे ध्यान में नहीं आया, okay. So they don't want that to be taken to the risk. So mind is always connected, which means the conscious mind is there. You know, consciousness means 3. Are you getting this? तो हम ओम नमः शिवाय भी 3 बार बोलते हैं, 3 बार ओमकार भी करते हैं, बिकॉज द माइंड इज देयर, यू आर फुल्ली कॉन्शियस। यानी ऐसा ही मैंने नहीं बोला, मुझे पता नहीं चला मैंने 2 बार, तुम बोल ही नहीं सकते। तीसरी बार तो हाँ बोलते तो तुम्हें पता ही है, बंदा कानून उसका मानता है। या सो दैट इज इट। थैंक यू गुरुजी। यस, वेलकम। यस, तो फिर जो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा बोलते हैं, तो इज इट एनी रेलेवेंट? बिल्कुल 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 गलत है। सी एक्चुअली एक इंसान जाता है वो भी काम बिगाड़ सकता है, क्योंकि क्या है ना, 3 ऐसा अलग नहीं होते, हमारे भीतर ही 3 है। तुम सुबह सात्विक होते हो, दोपहर को राजसिक होते हो, रात को तामसिक होते हो, वो तो होते हैं ना। एक बहुत सुंदर स्टोरी है पेशवा की, माधवराव पेशवा की। माधवराव पेशवा पुणे में रहते थे, शनिवार वाड़ा में। अभी आप जानते हैं अभी भी शनिवार वाड़ा है, अभी भी उनका पैलेस है। एंड द स्टोरी गोस टू अबाउट 200-300 years ago। अभी वो सुबह सुबह कैसे उनकी टॉयलेट ब्लॉक जो है ना, इट्स ऑन द रोड। नॉर्मली यू सी दोस टाइम वास्तुशास्त्र के हिसाब से करते थे, टॉयलेट्स आर आल्सो ऑलवेज ऑन वन साइड, स्नान घर अलग होते थे, पकाने का घर अलग होता था, नहीं रसोई घर, क्योंकि दे यूज्ड टू फॉलो द सर्टेन प्रिंसिपल्स। तो उसका जो टॉयलेट में वो सुबह 7 बजे गए थे टू क्लीन हिमसेल्फ, एंड सडनली ही हर्ड समबडी सिंगिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। रास्ते से जा रहा है कोई गाते गाते, लेकिन ही बीइंग अ पेशवा, यू नो, ही वाज मैड। इस अरे ये तो मेरे राज्य का एक सिटीजन है, एंड ही सो वंडरफुल एंड आई नेवर न्यू। तो उसको कुछ अवार्ड देना चाहिए। बीइंग अ पेशवा, बीइंग अ किंग, ही रियलाइज एंड ही डिसाइडेड कि उसको एक वतन दे देंगे, एक गांव दे देंगे उसको, बिकॉज दे कुड डू इट दैट टाइम। तो दोपहर तक उसको वो फाइंड आउट करते हैं, बिकॉज पुणे वाज आल्सो नॉट अ वेरी लार्ज प्लेस, तो ही कुड ट्रेस एंड दे फाइनली ही कॉल्ड हिम इन द इवनिंग। दरबार में बुलाया कि उसका सम्मान करना है, और जैसे वो आया उन्होंने उसको 5 मोहरा दे दी और उसको भगा दिया। एंड देन इन द नाइट व्हेन ही वाज सिटिंग विद हिमसेल्फ, ही सेड ऐसा कैसे हो गया? सुबह मैंने सोचा, उसका गाना सुना था, ऐसा लगा कि वतन दे दो। शाम को जब एक्चुअली वो आया सामने आया तो 5 मोहरा दे दी मैंने। आई डिड नॉट गिव हिम द विलेज। एंड देन ही रियलाइज द मॉर्निंग जो सुना था वो अलग था। हम वो सात्विक होते हैं सुबह, नहीं, और दोपहर को हम तामसिक राजसिक होते हैं, जो सुबह का नहीं होता। सुबह का इंसान दोपहर को नहीं होता, दोपहर का इंसान रात को नहीं होता। So whatever commitments you make in the morning, you may not follow in the afternoon and in the night, and that's what happened with most of the people. तो आपको अजीब लगता है, ये फंसा रहा है हमको, सुबह एक बोला था, अभी एक बोला है। एक्चुअली उसका भी हाथ में नहीं है, बिकॉज व्हेन ही सेड समथिंग दैट वाज प्रॉमिस्ड बाय सात्विकता, तो उसके पास कल सुबह ही जाना पड़ेगा। व्हेन ही इज इन सात्विक जोन। हमारे 3 स्वरूप होते हैं, केवल दत्तात्रेय के नहीं, हर एक जन दत्तात्रेय है, क्योंकि हर एक के सत्व, रजगुण और तमगुण तीनों गुण है हमारे भीतर। बट वी कीप ऑन चेंजिंग कंसिस्टेंटली। 3 एक होता है तो बाकी 2 नहीं हो सकते। वी कैन बी ओनली इन 1 at a time, दैट इज, एंड विल टेक वन ऑफ द क्लासेस, यू नो,
We have a beautiful program called 3 is a company. You know, everything else is a crowd. Are you getting this? हर एक में 3 है तो हम 3 लेके घूमते हैं. हमारे 3 स्वरूप होते हैं हर एक के. नहीं? ध्यान में रखा? So somewhere we need to follow that. What you think in the morning, you will never think in the afternoon. That's why our thinking is not consistent. हमारे में चंचलता मन की नहीं होती. ये 3 गुणों के कारण से आ गई है. Are you getting this? Because प्रकृति जब चंचल होती है ना, तब ये 3 गुण प्राप्त होते हैं. अगर प्रकृति स्थिर हो जाएगी, तीनों एक हो जाएंगे, तो हम जन्म नहीं ले सकते. नहीं? That basically 3 है, इसका मतलब हमारे में differences हैं. That differences actually play a game of life. But if you can make your sattva throughout a year, throughout a day, then you can do it at will. मुझे दोपहर को सात्विक ही बनना है. Then there's some communication, and that could be Tripura Ras. Basically, हर चीज 3 में डिवाइड की थी ना. हमारे कॉन्शियसनेस के 3 प्रकार होते हैं. सुषुप्ति होती है, जागृति होती है, सपने होते हैं. When we are in deep sleep, when we are absolutely awake, and we are partly awake, we are active but not alert. 3 प्रकार है. So everything is understood by the human mind as 3. Without 3, we cannot understand. We need 3. Even when you say there are 2 duality, actually there's a middle point which is avyakta, which is unmanifested. Because of this, the 2 have come. Are you getting this? Because when the prana and apan are formed from the same vayu, the third one, vyan, is automatically formed. You cannot stop it. The third one is always there. But we may not see, we may not manifest. हमको लगता है 2 ही है. 2 तो हो नहीं सकते. So somewhere you need to appreciate that. Thank you for that question. बहुत सुंदर गुरुजी. रूपाली has a question. तो इसलिए हम कहते हैं ना, एक सात्विकता में, दूसरा रासिकता में नहीं होगा. So either you have to change yourself to सात्विकता. When साधुओं के सामने जाते हो ना, तो दोपहर को भी जाओ तो तुम सात्विक हो जाओगे. मैं हमेशा देखा हूँ कि देवरूप में आप कोई भी आते हैं ना, सात्विक जो नहीं है तो सात्विक ही विचार करेगा. इसलिए देवरूप में कहीं 10-15 दिन की सेवा करके जाता है, इतना रोते जाते हैं, और रोते एक बात भी करते हैं जाते जाते कि हम तो हर बरस आएंगे 15 दिन, और वो कभी नहीं आते. एंड इनिशियली आई यूज्ड टू गेट बॉदर्ड. अरे बोल के गया था. बाद में मुझे पता चलता है कि देवरूप में सात्विक स्पेस में बोला था, लेकिन बाहर की तामसिक स्पेस में जाता है तो भूल जाता है. He cannot understand. He cannot relate to it. Are you getting this? हर स्पेस की खासियत. So that is happening. Only when he is taken back to Devrup, he'll remember. अरे मैंने बोला था. When the conditions apply. Yeah. Then is there any way to maintain that satvikta throughout the day? Your consciousness all the time. You should be conscious about your awareness all the time. You should be aware. Yeah, I'm here and I can shift. And you can shift yourself. That's what happens without your knowledge when you go in front of the Sadgurus or Bhagwan या कोई अच्छी जगह पे सात्विक फेस पे. You forget yourself. You forget time. Because सात्विकता में time और space को है. सात्विकता is beyond all this. That's why पता नहीं चलता टाइम कैसे है. जब तुम सात्विक होते हो, ध्यान में बैठते हो, अपनी गप्पे मारते हो अध्यात्म की, you don't know how the time goes away. That is it. Yeah. Thank you, Guruji. Rupali ji, you can ask your question. Yeah. Jai Gurudev sir. Jai Gurudev, Rupali. सर मला असं विचारायचं होतं की एका सर्टन टाइम नंतर आपण देवाची भक्ती करायला चालू करतो. म्हणजे काहीतरी असं होतं की तुमची 20-25 वर्ष निघून जातात आणि त्याच्यानंतर तुम्ही एखाद्याला म्हणजे जसं दत्तांना किंवा अजून कोणाला तरी गुरु म्हणून मग त्याची भक्ती चालू करायला लागतात. मग असं का होतं? आपण पहिल्यापासूनच का नाही करत? आपले प्रारब्ध असतं जसं रुपाली की आपलं गेल्या जन्मीचं प्रारब्ध जोपर्यंत तो प्रारब्ध तिथपर्यंत नेत नाही. म्हणजे कदाचित तू अटेंड नसेल केला की आपला एक पहिला क्लास 1 महिन्याभरापूर्वी झाला होता, पॉवर ऑफ पॉझिटिव्हिटी. त्याच्यामध्ये आता त्यांना लक्षात आलं की कॉन्शियसनेस 3 प्रकारचे असतात. एक 200 के नीचे, एक 200 और 600 के बीच में और 600 के ऊपर. ऐसे वहाँ भी 3 प्रकार है. तो 200 के नीचे है, बिल्कुल कीचड़ है. वहाँ तुम जाओगे तो तुम्हें सोच भी नहीं आएगी कि अध्यात्म ऐसा कुछ होता है ना, क्योंकि जब तक सोच नहीं आएगी तुम नहीं जाओगे. लेकिन जैसे प्रारब्ध धीरे धीरे बदलता रहता है, तुम्हारे संस्कार निकलने लगते हैं, तो एक टाइम आता है यू स्टार्ट सीइंग द एंड ऑफ द टनल. दैट इज द फर्स्ट टाइम आपको प्रकाश की पहचान होती है. और जैसे प्रकाश की पहचान होती है, प्रकाश की खोज शुरू हो जाती है. दैट इज द टाइम गुरु, सदगुरु, भगवान तुम्हारी जिंदगी में आते हैं. नहीं उसके नीचे हो, है ना. अगर तुम पानी के नीचे हो तो बाहर का तुम्हें कुछ दिखने का चांस नहीं है.
जैसे मुंडी बाहर आती है ना, जैसे जो बाउंस बैक, हाँ सडनली यू रियलाइज द आकाश है, वायु है ना? अगर दिखेगा नहीं तो उसके बारे में सोचोगे भी नहीं, सोचोगे नहीं तो कुछ करोगे नहीं। तो ये टाइम आना पड़ता है ना। कई लोगों को शुरुआत से ही आता है, जैसे श्री गुरु काम ने अभी देखा कि डिडंट हैव टू गो थ्रू दैट हाँ ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, ही वाज डायरेक्टली प्रमोटेड टू संन्यास बिकॉज ही हैड कम विद अ पर्पस, ही हैड कम विद हिज ओन एजेंडा। नॉर्मली हमारा एजेंडा हमारा प्रारब्ध डिसाइड करता है, और ये जो होते हैं अवतार होते हैं ना, वो प्रारब्ध को वो डिसाइड करते हैं, खुद के भी और ओके दूसरों को। ओके सर वन मोर क्वेश्चन जस्ट स्वयं भक्त प्रारब्ध घडवी माय, स्वामी करू शकतो. स्वामी कैन चेंज ओके एनीबॉडीज प्रारब्ध दॅट विल. आणि सर असं काय होतं, एक लास्ट क्वेश्चन, म्हणजे आपल्या घरात जसं माझ्या घरात कोणीच देवाचं करत नाही आणि मी म्हणजे मला प्रत्येक वेळेला ते करायला आवडतं बिकॉज आय लाईक टू डू दॅट आणि मी नेहमीच करते. पण माझी आई, माझे वडील कोणीच करत नाही. मग असं का? नहीं, बिकॉज यू नो ये माँ बाप हैं तुम्हारे, ये शरीर के हैं. उसके पहले हर एक का हिसाब अलग है ना. तुम कहाँ से आई हो तुम्हें पता नहीं है. पिछले जन्म के माँ बाप कौन थे, कितने सात्विक थे, वो पता नहीं. यहाँ आने के बाद ये माँ बाप है ना. तो आई वडील वेगळे असू शकतात, कारण प्रत्येकाचं गाठोडं वेगळं आहे. हर एक जन अलग अलग ओरिजिन से आया है. तो शायद वो लेके नहीं आए, तुम लेके आए हो ना. ऐसे देखते हैं साथ में भी हम ट्रेन में प्रवास करते हैं, हर एक के पास वही सामान तो नहीं होता, हर एक के पास वही खाने का ये नहीं होता. किसी लोग के पास दूसरा खाने का होता है, कोई खाली ऐसा ही बिस्किट लेके आता है, कोई चिवड़ा लेके आएगा, कोई पूरा खाना लेके आएगा. सो सिमिलरली वी हैव कम, हम सब ऐसे आए हैं, अपना अपना गठुड़ा लेके आए हैं. तो माँ बाप के गठुड़े के साथ अपना वैसे कोई संबंध है नहीं. ओके सर. That is. ओके, थैंक यू सर. थैंक यू सर. वेलकम. सो गुरुजी, एक क्वेश्चन रूपाली के ही क्वेश्चन के ऊपर है कि जैसे आपने कहा अभी के प्रारब्ध के हिसाब से लोग वहां तक पहुंच जाते हैं इवेंचुअली. तो कोई लोग ऑलरेडी वो रास्ते में रहते हैं लेकिन दे फॉल बैक एंड वापस वो अपने रोज के मतलब जीवन में इतना मशगूल हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि वो भक्ति करते थे पहले कभी. तो उसके लिए आप क्या कहोगे? प्रारब्ध का एक खत्म हो गया ना, वहाँ पे उनका कार्ड खत्म हो गया. अभी मोबाइल है, सब है, लेकिन कार्ड चार्ज नहीं है. तो सब है, दे कैन रिचार्ज द कार्ड, बट दे डोंट रियलाइज मेनी टाइम्स कि दे विल कीप ऑन लिविंग द वर्ल्ड की ये नहीं, रेंज नहीं है. रेंज था, बैटरी भी चार्ज थी, लेकिन तुम्हारा कार्ड ही चार्ज नहीं किया है. सो समवेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी लूज दैट अवेयरनेस. इसलिए नीचे गिरते हैं. शायद उसका प्रारब्ध का इतना जितना मिलना था उतना ही मिल गया, बाद में नीचे गिर गया, फिर एक बार खेल शुरू उसका. जैसे अर्जुन और भगवान कृष्ण की बात है ना. अर्जुन ने सब लड़ाई के बाद कृष्ण को कहा, भाई अभी कृष्ण तुम अभी फिर एक बार गीता बताना यार. तब मैं बहुत जल्दी में था, लड़ाई थी, सब दिमाग में बहुत शोर मच रहा था, तब गीता अच्छी तरह समझ नहीं पाया. अभी तो बताना. कृष्ण आज केवल अभी नहीं बता सकता, अभी हो गया समय, क्योंकि दैट टाइम तुम्हारा सारा जो पुण्य था वो तुमने एक्चुअली इनकैश किया, एंड दैट्स व्हाई यू सॉ दैट विराट स्वरूप. लेकिन वो इनकैश किया, अभी कहाँ से लाओगे? अभी उतना पुण्य जब होगा ना, तब विराट स्वरूप देखोगे. इट्स लाइक यू नो, बैंक में तुम्हारे पास इफ यू हैव गॉट $10,000 कैश इन योर सेविंग बैंक एंड यू बॉट अ टीवी ऑफ $10,000 or something like some gadget. Now suddenly you look into the bank is zero now because $10,000 used, and you wonder where has it gone? No, nobody it has gone. You convert it into the kind, you convert it into a TV or something like that. No, you have converted from cash to kind. So somewhere हम ये नहीं समझते, ढूंढते रहते हैं. So जब तक वो $10,000 वापस नहीं आएंगे, सेविंग नहीं होगा, तब तक you cannot spend. So कृष्ण ने वही कहा उसको कि जब तुम्हारा और मेरा ये सारा जो बद्रीवन में हम लोगों ने तपस्या की थी, वो तुम्हारा पुण्य संचय हुआ, and that day you encashed to see my विराट स्वरूप. दूसरे किसके पास नहीं था उतना करेंसी. So only you saw that, and again you have got to earn that much so that you can have the same experience. So some हमारी पूंजी हम खत्म कर देते हैं, दूसरी पूंजी जब तक नहीं आती तब तक क्या करें. So you cannot have the same experience again. By experiencing you lose your पुण्य. काफी लोग मुझे पूछते हैं कि स्वामी का दर्शन क्यों नहीं होता. स्वामी का दर्शन होगा नहीं, लेकिन तुम्हारा बहुत सारा पुण्य निकल जाएगा. You will encash that, and then again साधना की शुरुआत से, स्वामी से दूर होकर तुम्हें शुरुआत करनी पड़ेगी. मंजूर है तो करेंगे. Are you getting this point?
तो सिंपली मतलब जब हमें एहसास होने लग जाता है कि हमारे पावर्स मतलब पुण्य जमा होने चालू हो गए, मतलब जो भी मांगते हैं वो मिलना चालू होता है, तो वी शुड स्टॉप आस्किंग फॉर इट इज द Yes, because then you are losing that. You are encashing that. Unless you are sure that you are going to be on this path and you keep on earning. See, जिसका अर्निंग चालू है उसको एक्सपेंसेस का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिसने कभी कभी अर्निंग किया है, इकट्ठा किया है, एक्यूमुलेटेड सेविंग्स है, उसको सोच समझ के खर्चा करना चाहिए. See, after retirement, normally people like me have to spend little carefully because there's not an ongoing source of income. तो कुछ तुम्हारा डिपॉजिट्स है, उसके इंटरेस्ट आता है, but that is limited, no? Because your working career is gone. You cannot keep on earning more. You can just earn just to live. So the retired people, the old people cannot flamboyantly, because their earning source is limited. So their expenses also have to be limited. Right. But koi jawan hai, 35, 40 years, he has still a long life in front of him. He can start another 2 businesses and earn money. So he can probably take a risk, but that is a risk even for it. Right. सोच समझ के हर चीज का खर्चा करना चाहिए. तो ये खर्चा हम खुद के लिए नहीं भी कर रहे और दूसरों के लिए भी कर रहे तो भी we have दूसरों के लिए खर्चा, दूसरों के लिए कुछ भी खर्च करते हैं तो उसका खर्चा नहीं होता, because he pays directly. अच्छा. Okay. Okay, It's thank a grant you given to you. It's a grant. so much. एक ही Thank हाथ you है very अभी much. सुवर्णा टर्ले जी का, तो do you want to take the last question? Yeah, the last question today. सुवर्णा जी, Suvarna ji, you can ask your question. हॅलो, जय गुरुदेव सर. हा सुवर्णाताई बोला. सर, मला असं विचारायचं होतं की आपण गुरुचरित्र हे स्त्रिया करू शकतात का? आणि दुसरं असं होतं की काही गुरुचरित्र पठणाचे नियम आहेत, वेगळे वेगळे आहेत. तुम्ही आता 7 दिवसाचं सांगितलं, काही आपण गाणगापूरला वगैरे 3 दिवसात पण तिथे जाऊन वाचतात लोक. नियम 3 दिवसाचा नाहीच आहे, वाचता तर त्यांचा प्रॉब्लेम आहे, ते कॉम्प्रोमाइज. दॅट कॅनॉट बी अ नियम. यू आर बेंडिंग द लॉ, बट बेंडिंग द लॉ इज नॉट द लॉ. 7 दिन का गुरुचरित्र में बताया गया है, जो नहीं कर पाते वो 3 दिन में करके खुद को समझाते हैं कि मैंने कर दिया. कई लोग 1 दिन में करते हैं, बट दैट इज नॉट द राइट थिंग टू डू. तो समय आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि उसमें नियम में आप बदलाव नहीं कर सकते, बट यू कैन गिव अ काइंड ऑफ फॉल्स सेटिस्फैक्शन कि मैंने किया. करना है तो उचितता से करना चाहिए. शास्त्र है तो शास्त्र के हिसाब से ही करना चाहिए उसको. So first decide whether it is a science or it is just a fun. गुरुचरित्र is not a fun. बहुत सारे लोग उसको समझते नहीं. और as far as the ladies का आपने बात किया, जैसे श्री गुरु ने कहा कि he can skip, उसको गृहस्थ आश्रम और ब्रह्मचर्य आश्रम से नहीं जाना पड़ा, because it's come with a purpose. वैसे हर साधक एक पर्पस के साथ है. जहाँ साधना का स्पर्श जिस स्त्री को हो गया, उसको ये नियम लागू नहीं पड़ते. She can do it. बट सामान्य स्त्री, ऐसे नियम हमेशा सामान्य के लिए होता है. तो नियम सामान्य, बट साधक सचमुच साधना कर रहा है तो उसको नियम उसके लिए शिथिल हो जाते हैं. तो उसको नियम पालने की जरूरत नहीं है. नियम का मतलब न पढ़ना है पढ़ना. बाकी जो 7 दिन है वो तो करना पड़ेगा. बाकी जो सारे नियम है, अगर पूरा रिजल्ट चाहिए तो पूरी तरह से करना पड़ेगा. आधा अधूरा करके पूरा रिजल्ट नहीं मिलेगा. आर यू गेटिंग दिस? सो ये ध्यान में रखना. और स्त्रियों को उस काल में नहीं पढ़ना चाहिए, मेंसेस के काल में. एंड देयर आर मेनी रीजंस व्हिच विल डिस्कस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. दैट्स व्हाई नॉर्मली स्त्रियों को नहीं करना चाहिए, बिकॉज मेनी टाइम्स इट मे जस्ट हैपन दैट मेंसेस कभी-कभी इरेगुलर हो जाता है. सो दे डोंट वांट टू टेक अ रिस्क विद दैट. दैट इज हाउ इट इज. आर यू क्लियर? थैंक यू गुरुजी. गुरुजी, 2 रिक्वेस्ट थी. एक तो अभी हम लोग जो हीलिंग ग्रुप में मुंबई के लिए रेकी भेज रहे थे, वो 7 दिन हो जाते हैं आज, तो कल से हम लोग, कल से एक काम करना, तुम अमेरिका को रेकी भेजेंगे हम सब. यू हैव क्रॉस्ड 1 लाख फिगर टुडे. 1 लाख पीपल हैव डाइड एक्चुअली इन अमेरिका. राइट. So we'll start sending to America from tomorrow 8 o'clock Indian time. ओके. रिक्वेस्ट करेंगे, start sending. वो हम लोग रेकी ब्रह्मा पे भी सर्कुलेट करेंगे. हाँ, we can do that. तो और we can twice a day ऐसे कर सकते हैं. 2 जनों को रेकी मिलेगी. So I'll ask Krupata to do that. Okay. We'll announce that.
थैंक यू गुरुजी। और Thank you दूसरा very था much and- कि अपना 21 जून से जो समर चिल्ड्रन कैंप शुरू हो रहा है, तो डू यू वांट मी टू शेयर द स्क्रीन फ्लायर? Yeah, you can share the screen so people will know. तो आप बता सकते हैं। US में, शिकागो में we are trying to do this. बच्चों के जो 6 शिविर अभी इंडिया में हो गए, वैसे 3 शिविर वहाँ करने की इरादा है, and that will start on 21st June to 30th June. You can share that, Vaishali, if you are yes. ready. Oh yes, yes. Those who would like to know may Screen. please do that. वो एक्चुअली मैं फिगर आउट कर रही हूँ, शेयर एक सेकंड। You have the right now to share, no? Yeah, I just not able to see it. Okay, what we'll do is we'll put it on Reiki Brahma tomorrow. Yes, Guruji. Okay. So thank you. Thanks everybody. Thank Vaishali. Thank Rakesh for organizing so wonderfully. Thank Ashwini for managing the screens. And thank you all. और भगवान दत्त आप सबके ऊपर कृपा रखे। जय गुरुदेव। फिर मिलते हैं अगले थर्सडे। Some more adhyayas and some more knowledge. Thank you very much and good night to all of you and good day to those from America. Jai Guru. Thank you, Guruji, and thank you everyone. We will end the meeting here.